इस महामंत्र का जाप करो, बहुजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, सर्वसाहुणम, सो वज्रलंकारो सर्वभाव परासणो, मंगलानंते सर्वेसि परममहमहि मंगलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, बहुजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, तीन नाम है तुम्हें कौन करना था? नहीं माने दो, मैंने कहा है। सर्वसाहुणम। देखा ही Thank you, everyone. Now I request Shanu to please welcome the guest and all the audience. देखा है सानू। जय जिनेंद्र सभी को। भगवान श्री महावीर के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। Am I audible? तो करनी लगा थी बॉडी 4 साल पहले। Yes, Shanu, you're audible. सबको चातुर्मास की सुख साथा और सबको पर्युषण पर्व के पहले मिच्छामि दुक्कडम। I welcome you all for this wonderful event today by our very own B2B convener Sunita, the most talented, multifaceted girl. We're looking forward to listen to her today. अपन सब तपस्या करते हैं पर्युषण में, पर समझ के जब करेंगे तो उसका मजा कुछ और ही होगा. And thanks to Sunita for helping us out with this today. A warm welcome to all of you once again. Thank you. Thank you so much, Shanu. And let me introduce our speaker for the day, Sunita, our very own Sunita, our friend. Sunita Gulecha, she's daughter of philanthropist and religious worker, Dr. A. Parasmalji Vaid. She has been learning and practicing Jainism since birth. Her inclination towards spirituality led her to learn the basics of Jainism through her double MA in Jainology that she pursued from Ladnan University and University of Madras. She has done her diploma in counseling psychology from Yale University, USA. She is currently pursuing a course in naturopathy from Arogya Mandir, Gorakhpur. Zentangling has been her passion, and she believes it is her meditation in motion. She has served as a guest lecturer at University of Madras, where her subjects of specialization were Tattva Sutra and Dhyan Sadhana in Jainism. She believes in giving back to the community, and so she offers free counseling services to those who are in need. She teaches Jainism to kids in Hawaii, USA, and is also helping somebody's on sorry. She is also helping her friends in Warsaw, Poland, understand the fundamentals of Jainism and its application in psychology.
She teaches Jain Sutras to kids from Rajasthan over video calls every day. She is one of the founder directors of Laksha Infras, along with her husband, Dr. Yashpal Gulecha, and is currently serving as the CFO of Laksha Infras. She believes wherever she is today is because of the unflinching support of her husband. Her kids have been her strength throughout this journey, and she's a proud mom of two wonderful souls. Thank you so much, Sunita, for doing this for us. I'm sure it's going to be a very enlightening session. And without wasting any time, all goes to you. Yes, you can begin. Thank you. Mahatma Mahavir ke charanon mein vandan. Thank you, Shanu. Thank you, Priyanka. And I really am missing you, Brinda, for this event. Thank you, Jeetu, for giving me this opportunity. I would like to thank my friend and my Kalyan Mitra Minu Choradia being there with me, guide. मैंने आज जो भी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रखा बताने के लिए इट्स a joint effort. My friend has been really kind. She's been may I request you all to be on mute, please. So today's session, आज का जो सेशन है ये है पर्यूषण में तप आराधना के बारे में. We have to actually understand हम जो तप करते हैं उसको कैसे किया जाता है, पर्यूषण क्या चीज है, how do we do आराधना. सी पर्यूषण क्या चीज है ये तो आई थिंक आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम दिया ही था, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द पीपीटी so that you can understand exactly मैं क्या बोलना चाहती हूँ. Sorry to interrupt, Sunita. Somebody with the name of iPhone, I'm not able to mute you. Please mute yourself because it will not be clear otherwise. We will miss on some important information. Somebody in the name of iPhone, I don't know. I'm not able to mute you. Thank you. Are you able to see the screen, Priyanka? Yes, Sunita. Yes. Okay, so let me start then. So let me begin with who is a Jain. See, हम लोग सब जैन हैं, हम ये जानते हैं. बट हम में से कितने लोग ये जानते हैं जैन किसको बोला जाता है. वी आर ऑल बोर्न हियर इन आर्य क्षेत्र इन इंडिया इन अ कम्युनिटी कॉल्ड जैन. बट क्या हम सच में जैन हैं? हम कुछ ऐसे कार्य करते भी हैं जिससे हम जैन कहे जाएं या माने जाएं. बहुत बड़ी चीज होती है ये समझना कि जैन कौन होता है, जैन कैसे होता है. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इज जिन. जिन का मतलब होता है स्वयं को जीतने वाला, और जिन के जो अनुयायी होते हैं वो होते हैं जैन. अब अगर जैनिज्म को देखा जाए तो हम जीतने वाली कम्युनिटी है. वी कैन नेवर लूज आवरसेल्व्स टू एनीथिंग एट एनी कॉस्ट. इसका ये मतलब वो वाला मतलब नहीं है जिसको हम हार जीत में लेते हैं. इसका मतलब होता है वो वाली जीत जहां हम हार कर भी जीतते हैं. सिर्फ जीत का ये मतलब नहीं है कि हमने जीत लिया, जैसे कोई रेस हो और हमने जीत लिया. यहाँ पे मतलब ये होता है इवन इफ वी लूज अ मैच, इवन वी लूज इन लाइफ, हमारे अंदर में जो द्वेष उत्पन्न होता है, हमारे अंदर में जो एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, उसके ऊपर हमें काबू पाकर उसको हमें जीतना है. वो ही रियल में जिन होता है, जैन होता है. ऐसे जिनों के अनुयायी हम हैं जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ को जीता. जब क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लेता है कोई, तो ऑटोमेटिकली उसका संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. उसी तरह अगर हम अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को डे बाय डे लाइफ में अपने आप को चेंज करते हुए इनके ऊपर, परिचयों पे ऊपर और बाकी सारे कषायों के ऊपर अगर हम जय पाते हैं और हम आगे निकल पाते हैं, ओनली देन वी विल रीच द अल्टीमेट गोल. हमारा अल्टीमेट गोल है मोक्ष पाना. We are born in Jain community and we are supposed to be just give me one minute. Is this screen visible, Priyanka? No, it stopped. Stopped. Okay. I thought you stopped it. It just stopped now. Okay. Give me a minute. I'll come.
Yeah, now we can see Sunita. Okay. You can put the See. slideshow if you want. तो मैं जस्ट टेलिंग कि हम वर्च्यूज से, कर्मों से जैन है क्या? हम कर्मों से, अपने कर्म डज नॉट मीन कर्म दैट वी हैव डन ऑलरेडी। कर्म हियर मींस हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसमें हम जैन है क्या? जैन धर्म, जैन कुल मिल गया, लेकिन हमने उसको पाला कितना, उसको जीवन में उतारा कैसे, जीवन के जीने की शैली को उतारना, जिन भगवान ने जो हमको बताया है उस हिसाब से उतारना, उसको बोलते हैं जैन और जैन जीवन शैली। Now there are 4 kinds of दुर्लभ rarities that are mentioned in our texts. Scriptural text जो हमारे आगम है उसमें 4 ऐसे प्रकार की दुर्लभ चीजें बताई है। सबसे पहले उसमें बताया गया है मनुष्य भव। मनुष्य भव मिलना इतना दुर्लभ है क्योंकि इसी भव में हम धर्म आराधना कर सकते हैं, तप त्याग साधना कर सकते हैं, आगे अपनी कषायों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य भव मिले तो ही होता है, क्योंकि जानवर ध्यान साधना में नहीं बैठ सकते हैं, वो अपने कषाय नहीं तोड़ सकते हैं, वो आराधना में नहीं लग सकते हैं। देवता भी तरसते हैं मनुष्य भव मिलने के लिए और संयम पाने के लिए। तो हमारा ये जो भव है बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और इसमें अगर धर्म श्रवण हो जाए, जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन आर्य क्षेत्र, भरत देश में जन्म लिया है हमने, तो धर्म का श्रवण बहुत इजी हो जाता है। धर्म श्रवण का मतलब सुनने का मौका मिलना, हमारे आजू बाजू आचार्यों की उपस्थिति, गुरुओं की उपस्थिति, पाठशालाओं की उपस्थिति, ये सब बहुत बड़ी चीज है। और अगर हमारा मन हो और हम जाके सुन पाए, वो सबसे रेयर चीजों में से होती है। उसके बाद उसी चीज को जिसको हमने सुना है उस पर श्रद्धा रखना। ऐसा लगता है कि टेक्निकली देखा जाए तो श्रद्धा को बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बोलते हैं। तो श्रद्धा जो है ना, सबसे पहला मार्ग होता है मोक्ष की शुरुआत के लिए। जब हमारा लक्ष्य ही मोक्ष है तो हमको श्रद्धा बहुत ज्यादा जरूरी है धर्म पे और धर्म की बातों पे। लेकिन अगर हमने ज्ञान को लिया लेकिन उसको उस पर श्रद्धा नहीं की, तो वो ज्ञान का मतलब ही नहीं होता है। उसका आचरण में लाना उससे भी ज्यादा रेयर चीज है। तप आराधना करना बहुत बड़ी चीज है। उस तप की आराधना में हमको कैसे करना है, क्या करना है, उसी के लिए आती है ये सारी पर्वों का जो श्रृंखला में दिया जाता है। कभी ओलियां आती है, कभी पर्युषण आता है, कभी महावीर जयंती आता है, कभी कुछ हमारे पर्व होते रहते हैं। पर्व का जनरल मीनिंग होता है फेस्टिवल्स, बट हमारे यहाँ बाकी रिलीजन की तरह धूमधाम नहीं होता है, बाकी कोई शोर शराबा नहीं होता है, हमारे यहाँ आडंबर नहीं होता है इतना ज्यादा। तो क्या चीज होता है जिसकी वजह से हम पर्युषण को महापर्व बोलते हैं, पर्वाधिराज बोलते हैं? पर्युषण के पीछे पीछे ही 10 लक्षण पर्व आता है। आगे के अगले ही 10 दिनों में, जिस दिन हमारी संवत्सरी होती है उसके अगले ही 10 दिनों में 10 लक्षण पर्व दिगंबर मनाते हैं, पर्युषण श्वेतांबर मनाते हैं। तो ये दिनों का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने पहले वाले सेशन में बताया था कि पर्युषण हम मनाते क्यों है, पर्युषण से मिलता क्या है, पर्युषण कहाँ से शुरू हुआ, पर्युषण कैसे किया जाना चाहिए, सारा चीज मैंने बताया। फिर भी जस्ट टेल स्मॉल जस्ट पर्युषण का मतलब है परि प्लस उष्ण, सभी प्रकार से, सभी और से, सभी तरह से। उष्ण का मतलब जलाना, तपाना। तपाना मतलब वार्म लाना या बर्न करना। हमारे कर्मों को, हमारे कषायों को सभी ओर से, सभी तरह से हमको उसको जलाना है, उसको तोड़कर निकालना है। और इसमें उपलब्धि क्या क्या चीजों की होती है? फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोसोमैटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं चेंजेस आते ही आते हैं। फिजिकली हम तप करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे काय का कृश करते हैं। मेंटली हम जब आराधना में लगे रहते हैं, क्षमापना में लगे रहते हैं, तो बहुत कम स्ट्रेस होता है। और इमोशनली हम अपने आप को मोटिवेट करके साइकोलॉजिकली अपने डिसऑर्डर्स को, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से उनको चेंज कर पाते हैं। हम टेक्नोलॉजी का डिटॉक्स करने की बात करते हैं पर्यूषण में। यूजुअली एक जमाना हुआ करता था जब नो इलेक्ट्रिसिटी वाला सीन होता था। आज का जमाना है कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी हो गई, टीवी फ्रिज हो गया, उसके बाद लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स आ चुके हैं, जिससे हम दूर रह नहीं पा रहे हैं। मिनट मिनट हम उस मोबाइल को टच कर रहे होते हैं, जाने अनजाने ये भी नहीं समझते कि एवरी टाइम वी टच दैट मोबाइल, देवकाई की जीव की विराधना और हिंसा होती है, जिससे वी हैव टू डू तेला ईच टाइम वी टच द मोबाइल। ये सीन आपको ध्यान ही नहीं आता, दिन में 50 बार तो हम हाथ ही लगा देते हैं। एक जमाना था जब हम छोटे थे तो लोग बोलते थे स्विच ऑन किया है तो 3 दिन का तेला होता है, उसका दोष, दंड होता है। और अभी सोचिए अगर इतना मोबाइल हम दिन में टच कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली हमको कितना डिटॉक्स करना चाहिए, जिसको हम कर ही नहीं रहे। टेक्नोलॉजी को हम ऐसे यूज कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब के यूज करते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं हो वहां हम घुसे पड़े रहते हैं।
जैसे ही हम ये सब चीजों का त्याग करते हैं ना, ऑटोमेटिकली इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हम हेल्प करते हैं। बिकॉज जितना हमारा पावर यूसेज कम होता है, जितना हमारी टेक्नोलॉजी यूसेज कम होती है, जरूरत हो तो यूज करें, ऐसा नहीं बोल रहे कि यूज ही नहीं करना है, बट इफ इट्स नीडेड वी डेफिनेटली हैव टू हैव इट, वी हैव टू यूज इट। बट जहाँ जरूरत नहीं है तो इकोलॉजी को भी वो हेल्प करता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रूव होता है। बट सबसे बढ़िया चीज जो पर्यूषण की है वो है हमारा स्पिरिचुअल सेंस को जगाने का काम, हमारी वीतरागता को जगाने का काम। ये वीतरागता क्या चीज होती है ना, वीतरागता इज मोर लाइक राग और द्वेष का जो हम हनन कर सकें, तो वो भाव होता है वीतरागता। इट्स मोर लाइक नॉट डूइंग क्रोध मान माया लोभ, इट्स मोर लाइक कंट्रोलिंग योर पैशंस। अपनी आत्मा में रहने का काम होता है वीतरागता में। रिचुअल्स यूजुअली जो हम पर्यूषण में करते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जैसे प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा, व्याख्यान, हम अनशन आदि कर लेते हैं, काष्णा उपवास आम्बिल कर लेते हैं, रात्रि भक्ति भी करते हैं। श्वेतांबर में स्थानकवासी हो तो अंतगढ़ सुनते हैं, कल्पसूत्र सुनते हैं, मंदिर मार्गी हो तो कल्पसूत्र सुनते हैं। और सभी के सब जन संवत्सरी के पर्व के दिन क्षमापना का तो 100% करते ही करते हैं। त्योहार सबसे क्षमा याचना करते ही हैं। बहुत बड़ी चीज है क्षमा याचना को समझना और उसका पालन करना। हम क्षमा मुंह से बोल लेते हैं सामने वाले को देखकर, बट हमारे अंतर में क्या बीतनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए अंदर की भाव, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है क्षमापना में। वरना तो वो गांठ खुलता ही नहीं है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला सीन तो होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातचीत चल रही होती है। सो पर्यूषण को जनरली बोला जाता है इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ रत्नत्रय, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही माना जाता है मोक्ष मार्ग का रास्ता। और ये जो हम पर्यूषण में सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, व्याख्यान सुनने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं जब गुरु महाराज कुछ बोलते हैं, और उसी के अनुसार हम आचरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे आचरण में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, किसके साथ बात करनी है, ये सारी की सारी चीजों का हम ध्यान, ये बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा थोड़ी देर में वो गाड़ी वाला उधर आएगा अपने श्रीनिवासा में, तो ये क्या बोलता अपना भगवान स्पेशल यू टू दो बी किलो संगीता जी, तो थोड़ा भिजवा देना, 3 किलो भिजवा दीजिए। request you, Priyanka, can you put them on mute? I did, Sunita. Yeah. Thank you so much. तो पर्यूषण का जो सेलिब्रेशन है वो ये रत्नत्रय बोलते हैं इस चीज को। इस चीज की तो हम हर रोज गीत गाते हैं, जब भी मंदिर में जाते हैं, अगर हम चावल चढ़ा रहे होते हैं तो 3 डगले रखते हैं ऊपर, वो भी रत्नत्रय का आराधक है, सूचक है। धूप और दीप करते हैं, वहां पर भी हम बोलते हैं कि हमको ज्ञान मिले, हमको मिथ्यात्व से हम छूटे। ये सब चीजें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के ही सूचक हैं। बट करते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऐसा एक माहौल बनाया जाता है, ऐसा एक पर्व लाया जाता है जिसमें हम ये सेलिब्रेट कर सकें और इसको समझ सकें। ऐसे व्यवहार में देखे जाए ना तो पर्यूषण के कुछ कर्तव्य बताए हैं। कल्पसूत्र में वार्षिक 12 कर्तव्य, मतलब पूरे साल भर में जैनों के 12 कर्तव्य, और पर्यूषण के ये 5 कर्तव्य बताए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑन दिस, क्योंकि ये हम वैसे भी सुनते हैं। बट इसमें बेसिकली आता है अहिंसा का पालन, साधर्मिक भक्ति, अठम तप करके संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना, क्षमापना करना और चैत्र परिपाटी। ये बेसिकली सभी को पता ही होगा क्योंकि ये चीजें रेगुलर लोग करते हैं। बट अब मैं फोकस करना चाहूंगी फास्टिंग पे। हमारा एम क्या है फास्टिंग में, और हमारे फास्टिंग से और तप से क्या क्या अंतर होता है इन दोनों के बीच में। हमारे तप से हमारी एम क्या होती है, हमारी अल्टीमेट गोल क्या है तप से। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि फास्टिंग जो होता है, जिसको हम लूजली ट्रांसलेट, तब को लूजली ट्रांसलेट इंग्लिश में करें तो उसका वर्ड मीनिंग होता है फास्टिंग। बट हमारा तब फास्टिंग नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है। फास्टिंग बेसिकली होता है काइंड ऑफ अनशन, जहां आप खाने का त्याग कर देते हैं। यू डोंट ईट, यू मे बी डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, यू मे बी डूइंग अ डेज फास्टिंग, यू मे टेक वाटर, और यू मे डू वो संतोषी मावरा एकादशी, जहां आप अन्न नहीं खाते हो या एक ही बार अन्न खाते हो। अगर तो अन्य जैन मत के अलावा अन्य जो मत होते हैं उनमें भी फास्टिंग होती है। पर हमारे और उनके तप और फास्टिंग में डिफरेंस क्या है। हमारा तप जो होता है ये 12 प्रकार का होता है, और हमारे तप में शरीर से लेके अंत तक, जहां तक हमारा ध्यान जाए वहां पूरी चीजों पर कंट्रोल करना, पूरी चीजों का चेंज लेके आना, उसका पूरा इंक्लूजन दिया है तप में। और हमारे तप का एम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग तप। अब क्योंकि सब लोग सिद्धि तप कर रहे हैं तो मुझे काफी दोस्तों ने बोला यार 400 लोग चलने में सिद्धि, और मेरे से तो कुछ तप ही नहीं होता।
કેમ કરવાનું શું मुझसे तो तप होता ही नहीं है, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर आपसे तप नहीं होता है तो मतलब डू यू मीन तप फास्ट वाला तप, फास्टिंग वाला तप, और डू यू मीन जो तप हमारे 12 प्रकार के तप बताए गए हैं वो? क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी तब सिर्फ फास्टिंग नहीं होता है, तब सिर्फ अनशन नहीं होता है, तब सिर्फ एकाशना, आयम्बिल, उपवास, व्यासना, वो वर्षी तप, सिद्धि तप, और ये बड़े बड़े तप के नाम जितने आप, वर्धमान तप, ये जो भी तप आप बोल रहे हैं ना, ये तो सिर्फ एलकेजी वाला स्टेप है। हम कब तक उसी एलकेजी में बैठेंगे? ये सोच बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि तप क्या चीज है एक्चुअली। तप के टाइप्स देखने के पहले तप क्या चीज है वो देखेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र में चैप्टर नंबर 9 में बोला गया है तपसा निर्जरा च, माने तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इच्छा का निरोध करना वो होता है तप, और संवर होता है जहां कर्मों को हम आने के लिए पहले रोकते हैं। कर्म अंदर आए ही नहीं, बने ही नहीं, तो फिर उनको निकालने की जरूरत ही नहीं होती, वो होता है संवर। अब तप करने से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। बिकॉज ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जैसे एक बोट में अगर छेद हो और उस छेद से पानी अंदर आता जाए और आप निकालने की कोशिश करो, अंदर आने के प्रोसेस को संवर कहते हैं, पानी निकालने के प्रोसेस को निर्जरा कहते हैं। जैसे कर्म अंदर आए तो वो संवर, और कर्मों को हमने शेड किया उस प्रोसेस को निर्जरा कहते हैं। लेकिन अगर हम प्लग इन करके उन कर्मों को अंदर आने से रोक दें, संवर को ही रोक दें, सॉरी संवर ही करके कर्मों को ही रोक दें, जो अंदर आने का आश्रम का जो प्रोसेस था उसको अगर हम रोक दें, इन्फ्लेक्स को ही रोक दें, तब हमारे निर्जरा का कोई मतलब होता है। हमारी रोज की तपस्या का कोई मतलब ही नहीं निकलता अगर हम दिनों दिन कर्म बंधन करते ही जाएं और सिर्फ तप कर करके कर्मों को झराते जाएं। निर्जरा का मतलब है कर्मों को झराना, उतारना, शेड करना, और संवर का मतलब है कर्मों को अंदर आने से पहले ही रोक देना। कर्मों को अंदर आने से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही निर्जरा का फल मिलता है। मतलब निर्जरा का अर्थ होता है देयर इज नो पॉइंट जस्ट डूइंग स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम बाइंडिंग कर्म। क्योंकि हम कैसे बाइंड करते हैं कर्मों को? हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, रात को खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, घूमने जाते हैं, हमारा द्वेष बढ़ता रहता है। कभी हम किसी पोस्ट पे हो तो हमको अप्रिसिएशन ना मिले तो गुस्सा है, हम पोस्ट पे हो लोग हमारी ना सुने तो गुस्सा है, हम सासू माँ है बहू ना माने तो गुस्सा है। Sunita, थोड़ा सा आवाज थोड़ा loud if it's possible. It's a little low. Your volume is getting a little low. अच्छा, आई विल जस्ट चेक। मतलब थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ रहा है. Just come closer and talk ना. इज इट फाइन नाउ? Yeah. या ठीक है। तो हम जो ये पूरा दिन करते रहते हैं, इसमें हमारा क्लेश बनता रहता है, हमारे झगड़े होते रहते हैं। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू इन द एंटायर डे, क्योंकि मन में तारतम्य फीलिंग होती रहती है। कभी गुस्सा रहता है, कभी खुशी रहती है, कुछ मिल गया तो खुशी, कुछ नहीं मिला तो गम। ये सारी चीजों को पार करके हम जीत जाएं तो हमें जिन कहते हैं। और अगर हम ये ना कर पाए तो ऑटोमेटिकली हम संवर कर नहीं पा रहे हैं और हम कर्मों को बनाए जा रहे हैं, कर्मों के अंदर घूमे जा रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टॉप द एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा एंड देन वी नीड टू डू तप। खाली तप करते हैं अपन, लेकिन ये भी नहीं देखते कि हमारे बोलने से किसी को तकलीफ हुई तो वहां कर्म बंधन फिर से हो रहा है। हमारे तप में अगर 2 बजे खाना एकाशना करने का विचार हो और अगर किचन में खाना रेडी नहीं हो और बहू बना रही हो तो सासू माँ पूछने बैठ जाते हैं, क्यों भैया आज खाना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी करो मेरा तप चल रहा है, पता नहीं है तुमको। हम ये भी नहीं समझते हैं कि तप में समता भाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एकदम ये छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बहुओं का भी यही होता है, बेटियों का, बच्चों का भी यही होता है, सबका यही चल रहा होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे संवर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आश्रव करते रहते हैं और संवर नहीं कर पाते हैं। तो इसी तप के श्रृंखला में अगर आगे जाएं, हम आगे देखें तो तप के कई प्रकार बताए हुए हैं। उसके पहले हम देखेंगे अकाम और सकाम निर्जरा। निर्जरा की जो बात मैं बता रही थी ना, निर्जरा में ऐसा होता है कि यू हैव टू शेड योर कर्मास। नाउ हाउ डू यू शेड योर कर्मास? एक होता है कि हम पुरुषार्थ से उसको शेड करते हैं, और एक होता है कि बिना पुरुषार्थ के अपने आप ही कर्म बांधे हुए हैं। जैसे हमको स्त्री भाव मिला, जैसे आई एम अ लेडी, तो मैं कुछ एफर्ट नहीं डाल रही हूँ ना अपने आयुष्य कर्म को घटाने के लिए, ऑटोमेटिकली आयुष्य घटता जा रहा है, नेचुरली हो रहा है, मेरे को कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। नेचुरली दिन उगता है, रात होती है, जस्ट बिकॉज आई एम अ वाइफ, आई एम अ
अदर तुम्हें अपना जो काम कर रही है वो ऑटोमेटिक नेचुरली हो रहा है, उसके लिए मैं स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाल रही, दिन भर जो चल रहा है चल ही रहा है, तो उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। लेकिन सकाम निर्जरा वाली जो चीज है यहाँ पर होता है सबसे पहला कि हमारे कर्मों को तोड़ने में, क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म टूटते हैं जब हम सकाम निर्जरा, अनंत अनंत कर्म तोड़ पाते हैं जब हम जान करके कर्म को तोड़ने के लिए एफर्ट्स पहले डालते हैं, पुरुषार्थ पहले करते हैं, कर्म के उदय में आने के पहले ही उसको उतार के तोड़ने का, उसको शेड करने का जो कार्य हम करते हैं उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा। जब अकाम निर्जरा होती है ना तो कर्मों को हम कुछ नहीं कर रहे होते, वो अपने आप ही गिरते हैं, झड़ जाते हैं और अपने आप ही उनका फल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सकाम निर्जरा में हम योग करते हैं, तप आराधना करते हैं और हम साधना में लगे रहते हैं, अंतरात्मा में उतरने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर बड़े बड़े अमाउंट्स में जो हमने कर्म बांधे हैं वो खत्म होते हैं। और ये सकाम निर्जरा जब हम करते हैं ना तो इसमें हमारे पुण्य तो बनता ही है, बट अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष का वो हमको मिलता है। ऐसी सकाम निर्जरा किस चीज से होती है ये समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 12 प्रकार के तप कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हीं तप से जो परमात्मा ने बताया है उसी से हम सकाम निर्जरा करके बड़े बड़े कर्मों का लीप्स ऑफ माउंटेन्स ऑफ लीप्स ऑफ कर्मास जो हम शेड करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो इसी से होगा। तो भगवान ने हमको काफी सारे चीजें बताई थी तप में, उसमें से जो 12 प्रकार, मुख्य तरह से 12 प्रकार के जो तप बताए उसके भी बहुत सारे डिविजन्स भी बताए। तो आई विल गो अहेड विद द काइंड्स ऑफ तप। इसमें सबसे पहले मंदिर मार्गी का जो सूत्र है प्रतिक्रमण का, जो हम सुबह शाम करते हैं, सी मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप टेलिंग, हम आराधना करते हैं, तप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन किसी भी सूत्र का हमको अर्थ ही नहीं पता होता है। ये जो हमारे प्रतिक्रमण सुबह शाम का जो प्रतिक्रमण होता है ना, उसमें नमामि और नानमी जो सूत्र होता है, नानमी सूत्र जो है ये हमारा अतिचार सूत्र कहा जाता है, उसको हम कौशक में करते हैं। तो इसका एक गाथा है, अनसन मुनो अरिया वित्ती संख्या रसत चाओ काय किले सो संलीनयाय बज्जो तवो हुई। इसमें हम 6 प्रकार के बाह्य तप की बात करते हैं, भगवान बताते हैं ऐसे 6 तप और उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। और उसके अगले सूत्र में हम प्रायश्चित्त विनय में, वो आगे जो का सूत्र है उसमें 6 प्रकार के अभ्यंतर तप की बात करते हैं। अब हमको ये समझना है बाह्य तप क्या है और अभ्यंतर तप क्या है। जो बाहर से हमको दिख रहे होते हैं ना, जिस तप को हम करके बाहर देख सकते हैं, जो शरीर के रिलेटेड है, वो है बाह्य तप, जैसे कि उपवास, एकाशना, आयम्बिल, रस परित्याग, कितने आइटम खाना है, कम खाना है, ज्यादा खाना है, या काय क्लेश करना और लोच करना, वो सारी चीजें जो है उनके बाहर में दिखती है। बाह्य तप हम कितना भी करें, लेकिन अंदर की शुद्धि जब तक हम उस पे काम नहीं करते तो बाह्य तप का मतलब नहीं। और बाह्य तप जो है इट इज द फाउंडेशन, इट इज द बेस फॉर अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप होते हैं इंटरनल तप, जो हम अंदर में करना चाहते हैं, अंदर से अपने आप को जो चेंज करना चाहते हैं, उसकी सहायता के लिए जो तप यूज किया जाता है। पहले बॉडी को निर्मल बनाने के लिए, बॉडी को केपेबल बनाने के लिए कि हम अंदर की तपस्या को ले पाए। हमारा यूजुअली क्या होता है, हम एकाशना व्यासना एम्बिल उपवास जो भी करें ना, ये सब अनशन में आता है, दैट्स जस्ट द फर्स्ट काइंड ऑफ तप। एक ही तप में हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, वी नॉट गोइंग अहेड ओनली। हम कब से कितने सालों से एलकेजी में बैठे, हमने कभी सोचा ही नहीं, कह रहे यार कितनी बार वही क्लास हम रिपीट करे जा रहे हैं, कभी ये तप कर रहे हैं, कभी वो तप कर रहे हैं, बट आगे के स्टेप्स में हम क्यों नहीं जा पाते। कई लोगों को हम देखते हैं जब हम व्यासना करने, सामूहिक व्यासना, सामूहिक तप होता है ना, कई लोगों को हम देखते हैं बैग भर के सामान घर से लेके आते हैं, कभी उसमें नारियल पानी होता है, कभी उसमें खटाई होती है, कभी उसमें एप्पल्स होते हैं, कभी कुछ और होता है। एकदम सिंपल सी बात मुझे समझनी है आप लोगों से कि तप करते हैं तो आप किस चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं, कर्मों का क्षय करने के लिए कि रस का, आपकी रस की लोलुपता को पूरा करने के लिए। वी आर सो डिजायरस ऑफ हैविंग सो मेनी थिंग्स कि हम वो एक एकाशना व्यासना एम्बिल में भी उसको छोड़ नहीं पाते। हार्डली कुछ दिनों का तप करते हैं हम, चलो 20 दिन होगा, 25 दिन का तप होगा, बट हमारे तप में जो भी हो रहा होता है उसमें हमारी कितनी जीभ की, हमारे टेस्ट की हमको इच्छाएं होती है कि हम सारी चीजें घर से, वहां तो ऑलरेडी बन ही रहा है, फिर भी हम घर से बना के लेके जा रहे होते हैं। वी आर नॉट इवन बॉदर्ड कि हमको तप में तो रस का त्याग भी तो करना बहुत जरूरी होता है। हम अनशन कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अनशन में सबसे पहले क्या चीज होती है। अनशन 2 प्रकार के होते हैं, जावत जीव अनशन और इत्वरिक अनशन। जावत जीव में क्या होता है, जैसे संलेखना और संधारा लेते हैं कोई, तो वो टोटली 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। 4 प्रकार के आहार कौन से होते हैं, असनम, पानम, खाइमम और साइमम, मतलब जो खाते हैं हम वो खाना,
जो पानी और लिक्विड पीते हैं वो, जो दवाइयां लेते हैं वो, और जो मुखवास वगैरह लेते हैं वो, ये चारों चीज का कंप्लीट त्याग होता है तो वो अनशन कहलाता है। और जावत जीव के लिए, आज से लेकर जब तक मैं न मरूं, वैसा अगर हम प्रण लेते हैं तो वो कहलाता है जावत जीव अनशन। इत्वरिक अनशन होता है जो हम टाइम बीइंग के लिए लेते हैं, नॉट कंप्लीट लाइफ, जब तक लाइफ खत्म नहीं हो तब तक का नहीं होता है। बट उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, सर्व इत्वरिक अनशन और देश इत्वरिक अनशन। तो सर्व अनशन में क्या होता है, ये चारों प्रकार जो मैंने आपको बताया ना, हम चारों का त्याग करते हैं टोटली। जैसे अनशन का एक्चुअल रूप तो बोलते हैं कि 24 उपवास ही एक्चुअल में अनशन होता है, क्योंकि उसी में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। पर हम जब देश अनशन करते हैं, देश इत्वरिक अनशन करते हैं, तो उसमें हम एकाशना व्यासना और सब करते हैं। और कभी अपन उपवास में भी तिव्यार कर लेते हैं, तो पानी का आहार होता ही होता है। तो वो सब इत्वरिक देश अनशन कहलाता है। तो उसमें जितनी भी प्रकार की हमने तपस्या की है वो सब उसी में आती है, हमारे इत्वरिक देश कैटेगरी में आती है। जो भी हम जितनी भी तपस्या आपने की होगी अभी तक, आयम्बिल वगैरह का तपस्या का दूसरा मैं बताती हूँ नाम क्या होता है। लेकिन एकाशना व्यासना उपवास सिद्धि तप वर्षी तप जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपने रस परित्याग नहीं किया है तो वो कहीं और फॉल नहीं करता, उसका कैटेगरी सिर्फ अनशन का ही होता है। अब हम देखेंगे उनोदरी। उनोदरी का मतलब होता है ऊन प्लस ओदरी। उनो मतलब कम लेना, ओदरी मतलब पेट, उदर पेट, पेट से कम खाना, पेट में कितना खाना डालने से पेट भरता है उससे थोड़ा कम खाना। अभी जनरली लोग बोलते देख मैं तो बहुत सारा 3-4 रोटी खा सकती हूँ, मैं तो इतना सारा चावल खा सकती हूँ, तो उसमें तू कम कैसे गिनाएगी मुझे। तो शास्त्रों में उसके लिए बताते हैं कि जेंट्स के लिए 32 कवल और लेडीज के लिए 28 कवल, इसमें उनका पेट भर जाता है। अपना हाथ और अपना मुंह, अपने मुंह में कवल इतने साइज का लेना कि मुंह बिगड़े नहीं, मुंह का शेप खराब नहीं हो, देखने वाले को बुरा ना लगे, वैसा होना चाहिए। और ऐसे में लेडीज का 28 कवल और जेंट्स का 32 कवल होना चाहिए। अब उससे एक भी अगर आपने कम कवल खाया, 32 खाया अगर जेंट्स ने, 27 खाया अगर लेडीज ने, तो वो उनोदरी में गिना जाता है। हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, लेकिन उनोदरी में एकाशना ही चलता है, एकाशनी में ही उनोदरी होता है। हर तप उत्तर बढ़ा तप होता है, बढ़िया तप होता है, और उसकी धर्म आराधना, उसकी निष्ठा बढ़ती जाती है। उनोदरी में एकाशना ही होता है, एक ही बार आहार लेने का होता है, और उस एक आहार में, और हमारा सबसे बड़ा, ये भी बात बताना चाहती थी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम एकाशना में बैठते हैं ना, हम 3 टाइम का आहार लेके खा रहे होते हैं। हम सबके ब्रेकफास्ट में जो बनता है वो भी हमारे लिए ऐड करते हैं, लंच का जो हमारा बन रहा है वो भी खाते हैं, और डिनर में कुछ बन रहा है तो आइटम कुछ है तो चल चल वो भी ला दे, वो भी खा लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। बट एक्चुअली वो तप नहीं होता है, वैसा नहीं होता, बिकॉज एक तो हमारे पास ड्यूरेशन है तप की, 48 मिनट्स का ही हम खा सकते हैं कुछ भी तप में। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको या तो 32 या 28 उतना ही निवाले खाने। आप लेडीज हो तो 28 ही खाना है आपको। यू कैन नॉट बी ईटिंग लंच ब्रेकफास्ट डिनर ऑल टुगेदर। और लंच में जो बनता है, आप यूजुअली अगर लंच के टाइम पे एकाशना कर रहे हो तो लंच में जितना आइटम बनता है उसी में से आपको खाना है। और हम क्या करते हैं तपस्या में, दुनिया भर की चीजें, सूखा मेवा, ये वो पता नहीं क्या क्या नमकीन और सब बना के रखते हैं, भाई तैयारी करके रखो कि बाहर की एक्स्ट्रा चीजें नहीं खा सकते। और सुबह ब्रेकफास्ट में इडली बनाओ तो वो भी दोपहर में लेंगे, शाम को कुछ और बन रहा है तो वो भी ले लेंगे, वड़ा बना जो भी बनाओ सब ले लेंगे, खिचड़ी ले लेंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड, हमने त्याग के लिए शुरू किया। 3 टाइम का खाना एक ही टाइम खाओगे तो होना क्या, पेट बाहर आना है, तबीयत खराब होनी है। फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी तपस्या आपको अंतरात्मा में उतरने के लिए हेल्प करे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके बॉडी में पेन आएगा, आपको नींद आएगी, आपका विकार बढ़ेगा मन में, दुर्ध्यान में आप जाएंगे। क्योंकि आप जैसे एकाशना व्यासना होता है, मोस्टली सब लोगों से मैंने सुना है एकाशना करके आधा घंटे का टाइम चाहिए बैठने के लिए, आई नीड रेस्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि हम इतना हैवी लोड कर रहे हैं उस पेट को कि वो उससे ज्यादा पचा नहीं पाता, वहां जगह ही नहीं होती है। कंप्लीट पेट को फुल नहीं करना, कभी भी पेट के 3/4 तक ही खाया जाता है। और लेडीज का पेट उनके हाथ के साइज का 28 निवाला ले ले तो फुल हो जाता है, तो हम 28 से कई ज्यादा ऊपर खा रहे होते हैं, इसीलिए हमारे पेट में जगह ही नहीं हो रही होती है और वो चर्न नहीं कर पाता है, और फिर हमको तकलीफ हो रही होती है कि यार मैं क्या करूं, मेरा मेरा पेट इतना दर्द कर रहा है, और फिर हम रेस्ट कर रहे होते हैं। और इसमें हम कभी भी कहीं पर भी देखते हैं तो आराधना में हमारा दिमाग नहीं लगा पाते। अब जब ये उनोदरी की बात आती है ना, तो द्रव्य उनोदरी जो खाने को लेकर है उसके बारे में है, लेकिन भाव उनोदरी जो है वो हमारे डिजायर्स, हमारे पैशंस को कम करने की बात है। अभी हम देख सकते हैं अनशन से ये एक लेवल ऊपर है, अनशन टोटली बॉडी के रिलेटेड था। ये उनोदरी आप जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप एकाशना न भी कर पाए तो 2 बार भी आहार लें, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन भाव उनोदरी जो है ये तो आप एवरी टाइम कर सकते हैं, एवरी मिनट कर सकते हैं।
जिनसे तपस्या नहीं होती हो उनके लिए जरूरी ही नहीं है कि वो ऐसा एकाशना आयम्बिल उपवास या तप बड़े बड़े करें, लेकिन बेसिकली जो रात्रि भोजन त्याग और नवकारसी का जो पचकान देते हैं वो ही अनशन हो जाता है, 12 घंटे का वो अनशन हो जाता है। इट्स सो सिंपल टू डू अनशन। अनशन के लिए बड़ी कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं होती है आपको, लेकिन उसके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनोदरी पे आना जरूरी है ताकि हम भाव उनोदरी कर सके। उसके बाद जो आता है वो है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे विल पावर को डेवलप करने के लिए। हमारा जो विल पावर है ना, ये जो हम सोचते हैं, हम जो काम करते हैं, काफी लोग बोलते हैं ना कि देखो सुनीता तुम तो यार बहुत ज्यादा तुमको ज्ञान है, इससे तुम कुछ बोल सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, हमारे पास ये सब है ही नहीं। ये क्या होता है, हमारी लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। और इसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि वृत्ति संक्षेप नाम का जो तप है ना उसको करना। अब ये वृत्ति संक्षेप क्या चीज है? वृत्ति संक्षेप 4 तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों से हम वृत्ति संक्षेप करते हैं। यूजुअली वृत्ति संक्षेप में लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट ये ले लिया कि द्रव्य का अगर हम परिमाण कर ले तो हो गया हमारा वृत्ति संक्षेप, लेकिन उसके बाद क्षेत्र भी आता है, काल भी आता है, भाव भी आते हैं। जैसे कि 10 आइटम बनी हो घर में और मुझे मैंने 4 का ही नियम लिया तो मैं 4 में अपने आप को सीमित कर लूं, वो हो गया द्रव्य संक्षेप। क्षेत्र मतलब जगह, किस जगह पे बैठ के मुझे खाना है, कैसे खाना है। हम यूजुअली एक प्लेस रखते हैं ना, एकाशना व्याशना कुछ भी खाते हैं तो एक प्लेस पे बैठ कर खाते हैं, तो स्पेसिफिक लोकेशन अपने माइंड में डिसाइड करें। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ तप। जैसे कि हम घूमते फिरते नहीं खाएंगे, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे बैठे नहीं खाएंगे, ये डिसीजन भी एक तप है। टू डिसाइड वेयर आई विल ईट माई फूड। जरा सा सोचना आप तब को क्या सोच रहे थे और मैं तब का आपको क्या एंगल दे रही हूँ। अपन यूजुअली तब को क्या चीज ले रहे होते हैं, और तब में वृत्ति संक्षेप में क्षेत्र क्या चीज होता है। घूमते फिरते कई लोग बाथरूम में बैठे बैठे मुंह में कुछ डाल के बैठ जाते हैं, चले जाते हैं ऐसे खाते खाते बाथरूम में। अगर आपने क्षेत्र डिसाइड किया हो कि मैं मेरे डाइनिंग टेबल पे या किचन के वहां जहां हम नीचे बैठ के खाते हैं या पर्दा लगा के बैठ के खाती हूँ, ये भी तप हो गया, ये भी क्षेत्र तप हो गया आपका। काल का परिमाण लेते हैं, काफी लोग नौकारसी, पोरसी, साठ पोरसी और सबका काल परिमाण लेते हैं कि मैं इसी टाइम पे इतने इतने टाइम पे इतने टाइम के बाद ही खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, ये मैं रात को नहीं खाऊंगा, ये भी एक प्रकार का तप हो गया। और भाव से, जैसे भगवान महावीर का एग्जाम्पल दिया जाए ना, तो उन्होंने कितने सारे अभिग्रह लिए हुए थे और कितने कितने टाइम बाद उनका अभिग्रह फला कि उनको एक दासी के रूप में एक राजकुमारी होना, वो भी एक पैर अंदर एक पैर घर के बाहर, वैसे उसमें भी मोड़ा सर, हाथ में उड़द के बाखले और 3 दिन की भूखी प्यासी, ये सब अभिग्रह भगवान ने दिया था। वैसे ही भाव अभिग्रह में भी कि मैं सामने किसी ऐसे इंसान को देखूं उसके बाद मैं आहार को ग्रहण करूं, या मैं गाय को कुछ देखूं कुछ करते हुए उसके बाद में आहार, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ पर्टिकुलरली अपने थॉट्स में लेके आना कि कुछ ऐसा सीन होगा, मेरा अभिग्रह फलेगा तो मैं आहार लूं। ये भी तप हो जाता है। आप भले खाओ कुछ भी, 1000 चीजें भी खा लो चलेगा, लेकिन वो भी तप में गिना जाता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू हाउ तप कैन हैपन। उसके बाद उससे भी बढ़िया चीज होता है रस परित्याग। आप जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ते हैं तप में, एक से एक तप से कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। अनशन में मिनिमम होता है, बढ़ते बढ़ते एक से एक कर्मों की निर्जरा ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा बेसिक पॉइंट यही था तब से कि हमको कर्म की निर्जरा करनी है। अब रस परित्याग में ये आता है कि यू हैव टू रिनाउंस वो वाले फूड जिससे आपके विकार उत्पन्न होते हैं। और हम ऐसे दीवाने हुए हैं आज खाने के मामले में, हमने कभी इस एंगल को देखा ही नहीं। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, फ्राइड आइटम्स, ये सब विगई में आते हैं। ये सब खाने लायक चीजें, भगवान ने कहा कि अगर जरूरत हो तो लो, वरना जितना हो सके इनका त्याग करो। इसका कारण क्या है कि दे प्रोवोक पैशंस, इससे विकार उत्पन्न होता है मन में। धर्म आराधना में चित्त नहीं लगता, क्योंकि दूध पीने से बल चढ़ता है। दूध का एक्चुअल यही बात होता है कि दूध, दही सब फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फुल ऑफ, देखो बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लायक की होती है। एक उम्र के बाद लिमिटेड दूध पियो तो बहुत बस हो जाता है। 3 बार दूध, चाय, कॉफी, ये सब की जरूरत होती ही नहीं है हमको। दही के वैरायटी ऑफ फूड्स, घी, तेल, तले हुए आइटम, शक्कर, गुड़, इतना जरूरत होता ही नहीं है हमारे बॉडी को। हम ओवरलोड करते हैं, इसीलिए धर्म आराधना में चित्त नहीं लगता हमारा। तो हमारा मूल उद्देश्य होता है कि धर्म आराधना में, वीतरागता में हमारा चित्त लगे। तो ये चीजों का त्याग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसी में अपना जो एम्बिल तप ना, वो इसी में आता है। एम्बिल में या नेवी में जब हम रस का त्याग करते हैं, या घर में भी अगर हम कभी भी एक एक दिन का एक एक चीज त्याग करें, आज चलो दूध का कुछ भी नहीं लिया, आज दही का कुछ नहीं लिया, ऐसे एक एक दिन करते जाए, तो हमारी जो जैसे शक्कर का त्याग या घी का त्याग, नमक का त्याग, ये चीजों से जो हमारा राग बना है, यही टेस्ट होता है, यही फूड हमको खाना है, ये अगर हम छोड़ पाते हैं तो उसको बोलते हैं रस परित्याग।
और इसमें उससे भी ज्यादा ऊपर की चीज होती है जो एक्चुअली मेंशनड ही नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आपको कि 4 महाविगय तो वैसे भी खाने लायक नहीं होते, वो अपक्षी होते हैं। और सबसे पहला उसमें आता है मक्खन। और हमारे घरों में क्या होता है, रोज का बच्चों को केक चाहिए, टोस्ट चाहिए, पास्ता चाहिए। हमने हैबिट बना ली है अपनी कि हम मक्खन को तो यूज करेंगे ही करेंगे। मक्खन का एक काल होता है, मक्खन जब छाछ में होता है तो ओनली फॉर 48 मिनट्स उस छाछ के अंदर रहा तो यूज करो, नहीं तो निकाले तो 48 मिनट्स के अंदर उसको तपा देना चाहिए। हम कितना बासी, कितना पुराना मक्खन बाहर से लाते हैं, उसको यूज करते हैं। म्यूट कर देना ना प्लीज। तो हम कितना पुराना मक्खन लेके आते हैं, उसमें अनंत जीव होते हैं, उसमें एक इंद्रिय जीव, समुच्चन जीव सब होते हैं मक्खन में, और हम उसको डेली यूज करते हैं। और ये रस परित्याग की बात आई तो जहाँ दूध दही की बात आती तो सोचिए मक्खन तो महाविगय की बात होगी। महाविगय तो यूज करने जैसी चीज ही नहीं थी। और हम एक साइड ऐसे आश्रम करते रहते हैं, संवर हमारा हो ही नहीं रहा, कर्मों को हम रोक ही नहीं रहे, और एक साइड हम सोचते हैं कि बड़े बड़े तप कर लिए तो बहुत हो गया हमारे लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं काय क्लेश के बारे में। काय क्लेश का मतलब है पेशेंस को डेवलप करना, एंड्योरेंस को डेवलप करना। जैसे कि लोच करते हैं लोग, साधना करते हैं लोग, धूप में खड़े होकर आतापना लेते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। और जो हमारे प्रतिक्रमण में सुबह शाम जो हमको योगिक आसन आते हैं, पता है मंदिर मार्गी के प्रतिक्रमण में, मैं तो मंदिर मार्गी हूँ, तो हमारे प्रतिक्रमण में तो मैंने देखा है कि एक एक सूत्र के लिए, अलग अलग सूत्रों के लिए अलग अलग आसन होते हैं। कभी लेफ्ट लेग होता है, कभी राइट लेग होता है, कभी खड़ा होना होता है, कभी दोनों पैरों को नीचे रख के मलासन में बैठना होता है। सो देयर आर, मतलब इट्स नॉट मलासन एक्चुअली, वो कुछ और आसन है। तो वीरासन होता है, पद्मासन होता है, योग मुद्रा होती है। तो बहुत सारे आसन तो हमारे प्रतिक्रमण में दिए हुए। उन आसनों को करते हुए यदि हम प्रतिक्रमण करें तो वो भी एक प्रकार का तप हो गया, वो काय क्लेश तप हो गया। आप दिन में खा रहे हो, जो खाना है खाओ, लेकिन अगर आप इतना भी कर लो तो ये बढ़िया तप हो गया आपके लिए। सो आप ये मत सोचना कि अनशन ज्यादा बड़ा है, ये काय क्लेश उससे भी बड़ा हो गया, क्योंकि दिस कम्स फिफ्थ। तो उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है तप और कर्म को क्षय करने की ताकत। और इसमें अब आता है लोकेशन। जैसे कि हम खड़े खड़े साधना करते हैं, हमने कभी सोचा है कि अगर हम लोगों का कौशक करें, खड़े खड़े होकर कौशक करते हैं, वो भी काय क्लेश होता है, उसमें भी तप की कैटेगरी में उसको लिया जाता है। ये जो योगिक पोस्चर जो भी हम वीरासन, पद्मासन, योगासन करते हैं, वो सब हमारे तप की कैटेगरी में ही है। कई बार कई श्रमण जिनके साधु जिनके ताकत नहीं होती, जिन्होंने अनशन ले लिया होता है, तो वो नीचे शैया पे सोते सोते, शयन पे सोते सोते ही कायोत्सर्ग मुद्रा में अनशन ले लेते हैं। ये सब का मतलब क्या है, वहां पर भी वो तप कर रहे हैं, वहां पर भी उनका तपस्या में दिमाग है। लेकिन देखो कुछ ज्यादा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो वो जगह को भी त्याग देते हैं आजू बाजू की, उसमें भी कायोत्सर्ग लेके बैठ जाते हैं। काफी ऐसे आचार्यों को मैंने देखा है सानक पसी में, जो धूप में खड़े होकर भर गर्मी के, मई के गर्मी के मौसम में धूप में खड़े होकर आतापना लेते हैं धूप की। इसके लिए नहीं लेते कि उनको शरीर में विटामिन डी चाहिए, इसके लिए लेते हैं कि वो काय का कृश कर सके। जब कभी साधन ना उपलब्ध हो, खाना ना उपलब्ध हो, धूप में चलना पड़े, तो शरीर में उसको सहन करने की ताकत हो, फॉरबेरेंस डेवलप करने के लिए। और ऐसे ही ठंडी में भी, ऐसे ही लोच वगैरह करने में भी अपन को आगे रहना चाहिए। हम जब सिक्स्थ काइंड ऑफ बाह्य तप देखें, बाह्य तप जो है शरीर के रिलेटेड जो बाहर से दिखते हैं, उसमें से जो लास्ट काइंड ऑफ तप है वो प्रतिसंलीनता है। प्रतिसंलीनता में कहा जाता है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं और हमारा जो माइंड है, उनके प्रति रेस्ट्रेंट लेके आना। जो खुशी हमको इन सेंसेस से मिलती है ना, हम पहाड़ों को देखते हैं और हमारी आंखें बहुत बढ़िया खुश हो जाती है, अरे वाह क्या सीनिक प्लेस है, मजा आ गया, अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है। इन चीजों को कंट्रोल करने का अगर हमको मन में आता हो, इन इस हैप्पीनेस को जिसको हम सेंसेस से डिराइव करते हैं, उसको कंट्रोल करना आए, तो उसको बोलते हैं संलीनता। संलीनता 4 प्रकार से की जा सकती है। इंद्रिय संलीनता, इंद्रिय संलीनता जिसमें हम सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। कषाय संलीनता जिसमें हम क्रोध, मान, माया, लोभ, जब गुस्सा आता हो, कोई सामने बैठा हो ना, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। समझो अब नौकरानी के साथ झगड़ा हो जाता है, उस वक्त कंट्रोल करना इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि वो हमारी नौकर है, वो कैसे हमको सामने बोल सकती है, ये तो इतना चढ़ता है हमको। हम उस वक्त अगर हमारे अपने आप को कंट्रोल कर पाए ना, वो भी तप की कैटेगरी में आता है।
कषाय की संलीनता, जब बाप बेटे का झगड़ा होता हो और अगर पापा ने कुछ बोल दिया हो बेटे को तो बेटे को भयंकर गुस्सा आता है। आप जानते क्या हो, आप कौन सी टेक्नोलॉजी समझते हो जो आप मुझे बोल रहे हो? ये जो गुस्सा आता है उस वक्त अगर हमने इसको कंट्रोल किया, जो अंदर में जो एक मान कषाय जो उत्पन्न होता है कि मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो, उसको भी अगर हम कंट्रोल कर पाए ना, तो वो भी कषाय संलीनता होती है और उसको भी तप की कैटेगरी में दिया गया हुआ है। और हमारी जो अनशन है उससे ये कई ज्यादा कर्मों को क्षय करने में हेल्पफुल होती है। योग संलीनता, जहां मन, वचन और काया, इन तीनों का हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए यूज कर सकें, और ऐसी ऐसी जगहों पे न जाना जहां हमारी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट ना हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना हो। गलत जगहों पे जाना, गलत लोगों के साथ रहना। वी आर ऑल पार्टी पीपल, सो मेनी पीपल टेल आई एम अ पार्टी एनिमल, और प्राउडली बोलते हैं शी इज माई क्राइम पार्टनर। मतलब ये सोचिए ना, हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की सोच ही नहीं सकते ऐसी जगहों पर, और हम प्राउडली उसको अनाउंस करते हैं पब्लिकली कि आई एम अ पर्सन हु लव्स पार्टीइंग, आई एम अ पर्सन हु डज सच थिंग्स, मैं इतना मजे मारती हूँ। ये सब चीजें हमको घुमाती है संसार में, हमारी आत्मा की ओर लेके ही नहीं जाती, पर हम उसको अनाउंस करते हैं पब्लिकली और उसमें जोर शोर से धाड़ फाड़ के बोलते हैं ये मुझे मत करना है। कर सकते हो, अपने लिए करते हो, साइलेंटली कर सकते हो, बट ऐसा पब्लिकली अनाउंस करके जब हम करते हैं ना, तो ये जो प्रतिसंलीनता जो हम एक्चुअली कर सकते थे एक तप के तौर पे, जिससे हमारा कर्म क्षय हो सकता था, वो भी नहीं हो पाता है। इजी वे करने का था लेकिन हमने उसको भी गंवा दिया। अब नेक्स्ट वी विल मूव टू अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप वो होते हैं जो आंतरिक होते हैं। आंतरिक माने हमारे उत्तरोत्तर परिणामों को, होते हैं ना क्रियाएं परिणाम में बंद, मतलब जो हम क्रिया करते हैं ना, हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती है, अगर उसमें हमारा परिणाम सही हो गलत हो, उसके बेस पर ही हमारा कर्म का बंधन होना नहीं होना डिपेंड करता है। तो परिणाम कैसे होने चाहिए, परिणाम के लिए हमको कौन से तप करने चाहिए, वो होते हैं आंतरिक तप। परिणाम का मतलब होता है अंदर के भाव, द थॉट प्रोसेस दैट गोज इनसाइड। आगे के जो 6 तप मैंने बताए ना, ये 6 के 6 तप सिर्फ इसके लिए किए जाते हैं कि आने वाले अभ्यंतर तप जो है ना, उसको हम इसमें हेल्प कर सके, हमको इसमें आगे बढ़ा सके। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित के बारे में तो आप सबने सुना होगा, ये तो हम वैसे भी जैन है तो सुबह शाम के प्रतिक्रमण में करते ही करते हैं। आई थिंक अगर हमने प्रतिक्रमण सूत्र भी नहीं किया हो तो भी, मतलब जनरली नहीं भी करते हो प्रतिक्रमण, तो भी हम संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं, आठम चौदस का प्रतिक्रमण कर लेते हैं, पक्की का प्रतिक्रमण कर लेते हैं, उसमें तो हम मत कामना कर ही लेते हैं, प्रायश्चित ले ही लेते हैं। तो ये आंतरिक तप में आता है और ये उत्तरोत्तर कर्मों को क्षय करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमारी साइकोलॉजिकल बेनिफिट इससे बहुत ज्यादा होती है। जब प्रायश्चित हम लेते हैं ना, जब हम रिपेंट करते हैं कि हमने जो गलत किया है उसको हम बोल पाते हैं, कन्फेस कर पाते हैं अपने कमीशंस और ओमिशंस को, हमारे फॉल्ट्स को, जब हम उसको बोल पाते, किसी के सामने हम उसको कन्फेस कर पाते हैं, तो that is the time when we are actually letting go of a lot of toxic knots that we build inside our blood and our system। हमारे बॉडी के अंदर जो हमने बहुत सारे नेगेटिविटीज को बिल्ड करके रखा है ना, वहीं पर जाकर फिर कर्म बंधन और होते हैं, वहीं पर उन्हीं नॉट्स पे, उन्हीं टॉक्सिक पार्ट्स पे जहां हमने टॉक्सिक थॉट्स रखे, वो थॉट्स फिर जाके फिजिकल फॉर्म लेते हैं और फिर वहीं से हमारा स्पिरिचुअल डीजेनरेशन होना चालू होता है, डिग्रेडेशन चालू होता है, और फिर ऐसे करते करते इमोशनल और मेंटल वेलबींग भी हमारा खराब होता है। तो प्रायश्चित इज ऑफ utmost importance for all those who want to start with तपस्या। तप का शुरुआत तो मेरे हिसाब से प्रायश्चित से ही होता है। अनशन तो वैसे भी हमको करना ही है, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग और नवकाशी के बिना तो जैन ही नहीं कहलाते हम। कम से कम में इतना होता है, बड़ी बड़ी तपस्या करके घर आने के बाद यदि हम ये ना सोचें कि हमने कितने रात्रि भोजन त्याग किया और कितना नवकाशी किया। बेसिक है कि क्योंकि जैन धर्म डिपेंड करता है अहिंसा पे, उसका मतलब बेसिक प्रिंसिपल ही अहिंसा है, प्राणातिपात है। उसमें अगर हमने अहिंसा का पालन नहीं किया, रात्रि भोजन त्याग में जीवों की अनंत जीवों की हिंसा होती है। ये जानकर, ये ज्ञान हमारे पास है और कई सालों से हमने गुरुओं से सुना है, इसको हम अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है पता है? कभी कभी आपने छूट ली वो बात अलग है, कभी कभी आपको मौका पड़ा, आपने नहीं मौका पड़ा टाइम से खाने का, वो बात अलग होती है। लेकिन ये जानते हुए अगर कर्मों को हमने अगर ऐसे ही छोड़ा तो कर्मों का बंधन हमने जान करके लिया है अपने ऊपर। ये हम जानते हैं कि रात्रि भोजन करना बहुत बड़ा पाप है, फिर भी अगर हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं, हम उसको किसके लिए करते हैं? क्योंकि हमको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना होता है, हमको बाहर होटल में खाना होता है, या हमारे हस्बैंड या घर में खाना नहीं बना, या कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। जबकि हम लेडीज हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर पे खाना खा सकते हैं, पर हम नहीं खाते हैं। इसीलिए नहीं खाते क्योंकि, और जिस दिन नहीं खा रहे होते तो उसका और भी स्पेशल बहाना होता है, जबरदस्त कर्म करने के लिए निकल रहे होते हैं, इसके लिए हमको रात को खाना होता है।
ये सोचना पड़ता है कि जैन होकर हमको इतनी बड़ी बड़ी तप आराधना में अनशन में लगे हैं, लेकिन जो बेसिक अनशन है, अनशन का जो सबसे बेसिक पार्ट है, रात्रि भोजन और नवकारसी, उतना तक तो हमको करना ही है। और अनशन जब हम बिगिन कर देना, इट इज ऑलवेज 36 आवर्स अनशन। अनशन कभी 24 घंटे का होता ही नहीं है। आज मुझे उपवास करना है तो कल शाम के सनसेट 6 बजे, सनसेट अगर होता है तो 6 बजे से लेकर, कल के 6 बजे से लेकर आज का पूरा दिन लेकर अगले दिन सुबह नवकारसी तक मेरे मुंह में कुछ नहीं जाए तो मेरा वो उपवास होता है एक दिन का। 36 घंटे का उपवास ही एक्चुअल एक दिन का उपवास गिना जाता है। इट इज नेवर कि आप रात को 10 बजे खाओ, 12 बजे तक खाओ और फिर आप बोलो कि नहीं वो हो गया। वो तो इसलिए दिया जाता है कि चलो कुछ ना कुछ आप तब करो, अदरवाइज आपको दिया नहीं है ऐसा कोई भी सिस्टम आगमों में। आगम के सिस्टम के हिसाब से 36 आवर का अनशन तप होता है। तो मैं ये बता रही थी कि जब आपको प्रायश्चित करना होता है तो आपकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज यू आर एबल टू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू आर रिपेंटिंग एंड कन्फेसिंग ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। और वो भी किसके सामने? गुरु के सामने। एक ज्ञानी गुरु के समक्ष में ही ये सारी चीजें बोली जाती है। और मेरे तो कई ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने भव आलोचना की, पूरे भव में, पूरे जीवन में उन्होंने जितना पाप किया, उनको जो जो याद है उन्होंने किताब में लिखा, गुरु महाराज के पास गए, शुद्ध मन से, शुद्ध अंतकरण से उन्होंने उसकी त्याग के, उसको आज के बाद नहीं करने के लिए त्याग, मैं ऐसे कर्मों को नहीं करूंगी, ऐसा पचकान लेकर, और जो किया उसके लिए गुरु महाराज ने उनको जो भी प्रायश्चित दिया वो लेकर आते हैं गुरु महाराज के पास बैठ के। उसको बोलते हैं आलोचना। भव आलोचना करके आते कई सारे। और वैसे भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आलोचना ले सकते हैं गुरु महाराज के पास। जैसे आपको पूरे जीवन का याद नहीं हो तो भी छोटी छोटी चीजें, जैसे भी याद आया कि किसी के रुपए ले लिए और हमने उसको वापस नहीं दिया, जाके गुरु महाराज से आलोचना लेके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ आलोचना, कि माला भी गिन लूं मैं उसकी जगह पे, उस जगह पे मैं कुछ और प्रायश्चित करूं, उस जगह पे मैं कोई दान दे दूं, कुछ ना कुछ करूं। और प्रतिक्रमण तो हमारा रेगुलर प्रायश्चित का सीन होता ही है। एवरी डे 2 टाइम का प्रतिक्रमण तो भगवान महावीर ने कहा है। इसका भी रूल इसके लिए दिया है कि हम जब गलती करते हैं हम याद ही नहीं रखते कि हमने गलती की, इसलिए भगवान ने कहा एटलीस्ट दिन में 2 बार, रात में जो गलती हुई उसका अर्ली मॉर्निंग तुम प्रायश्चित कर लो, और दिन में जो गलती हुई उसका इवनिंग में तुम प्रायश्चित कर लो। इसके लिए 2 बार बोला है, वरना तो एनी मिनट दैट यू डू अ मिस्टेक, अगर तुम्हारे मन से गलती का एहसास तुमको हो जाए और सामने वाले के पास अगर तुम माफी मांग लो तो वहीं तुम्हारा प्रतिक्रमण हो जाता है। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें दी हुई है प्रायश्चित में, वी विल नॉट गो इनटू सो मच ऑफ डिटेलिंग, बट ये इतना समझना ही बहुत बड़ी चीज है। हम नेक्स्ट देखेंगे विनय। अब ये सोचना विनय तप है, एंड इट कम्स सो फार आफ्टर सो मच आफ्टरवर्ड्स, क्या बोलते हैं, आपके प्रति संलीनता हो गया, आपका अनशन हो गया, आपका रस परित्याग, सब के बहुत दूर में विनय आता है। सोचिए ना, विनय में क्या चीज है ऐसा कि विनय को इतना बड़ा तप के रूप में देखा जाता है। इट कम्स एट द 8th प्लेस तप की कैटेगरी में। ऐसा क्या होता है? व्हेन यू रेवर, व्हेन यू रेस्पेक्ट समबडी, इसको एक्चुअली विनय को बोला जाता है धर्म का मूल। उत्तराधीन सूत्र में, दशकालिक सूत्र में तो इसके ऊपर चैप्टर के चैप्टर लिखे हुए हैं। उत्तराधीन सूत्र जो भगवान का अंतिम भगवान की जो देशना थी वो उत्तराधीन सूत्र है, और दशवें कालिक सूत्र मनक के लिए लिखा गया एक दशवें कालिक सूत्र का संकलन हुआ था। और ये दोनों सूत्रों में तो पूरे चैप्टर के चैप्टर, तो बिगिनिंग ऑफ उत्तराधीन सूत्र इटसेल्फ इज विनय का चैप्टर। सोचिए ना विनय कितना इंपॉर्टेंट एक चीज है, और विनय करने से तप हो सकता है। और हमने तो क्या सोचा कि मुंह बंद करेंगे तो ही तप होता है, बिकॉज वी रिड्यूस्ड जैनिज्म टू किचन रिलीजन। वी ऑलवेज थॉट खाना बंद कर दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वही जैनिज्म है। बट एक्चुअली जैनिज्म में कितनी सारी चीजें दी है तप में। हम जिसको तप बोल रहे हैं वो फास्टिंग से कितना डिफरेंट है। अभी आप सोचना कि दूसरों को रेस्पेक्ट करना, कौन से दूसरे लोग, कैसे लोगों का विनय होता है। यहाँ पे ज्ञान का विनय होता है, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, मन से विनय, वचन का विनय, काय का विनय और उपचार से विनय। अब ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र क्या चीजें हैं? 5 ज्ञान का विनय करना। जब भी हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान लेना और ज्ञान की आराधना में दिमाग लगाना। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किताब लो और किताब की आरती और पूजा सेवा करते रहो। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपको ज्ञान मिला, जैसे आज आपने मेरा ये सेशन सुना, इसमें आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो लिए ही होंगे जो आपको लगे होंगे नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे शायद एप्लीकेबल है लाइफ। उसका मैं आचरण में, जब तक आप ये उसको आचरण में जब तक लाएंगे नहीं तब तक उसका विनय होता ही नहीं। जब आपकी दर्शन शुद्धि होती है, जब आप किसी बात को मानने लग जाते हैं कि हाँ मेरे धर्म में ये चीज बोली हुई और ये सही बोला है इन्होंने, ये भगवान ने सही बताया है, आप जब मानने लगे, आपकी श्रद्धा दृढ़ हो गई, तो उसके अनुसार आपका चरित्र में चेंज आए, आपके कैरेक्टर में। जैसे आपको मैंने बताया अभी रात्रि भोजन तो महापाप है, अभक्ष्य और मक्खन खाना तो महाविगय में आता है, तो उसको खाना ही नहीं होता है, खा ही नहीं सकते। ये जानने के बाद यदि आप खाते रहे तो उत्तराधीन सूत्र में कहा जाता है कि ज्ञान बिना उपयोग के, ज्ञान को अगर हमने उपयोग में नहीं लाया तो इट बिकम्स अ बर्डन ऑन अस, ये वेस्ट है, हम कंधों पे अपने बोझ ही लेके जा रहे हैं, वो हमारे लिए कोई काम ही नहीं आ रहा होता है।
तो ऑलवेज व्हेन यू गेट सम नॉलेज अपने लाइफ में एटलीस्ट जितना उतार सको, देखो आज ये नहीं हो जाए कि आपने सुना और आपने फुल एंड फुल छोड़ ही दिया सब कुछ, लेकिन कुछ हद तक तो आप नियम ले ही सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कर ही सकते हो कि ये चीज अभक्ष्य नहीं खाने की, रात्रि भोजन नहीं करने जैसा है, कम से कम नवकार्सी का पालन करने जैसा है। क्योंकि जैन वही होता है जो बेसिक चीजों को एटलीस्ट समझे, दिनचर्या क्या होती है उसको वो जाने और उसको वो जिए। जानना, मानना और अनुकरण करना, यही मोक्ष का मार्ग है। हम ज्ञान को लेंगे, उसकी श्रद्धा करेंगे, वो दर्शन, और उसी को चरित्र में पालेंगे, ये होता है मोक्ष मार्ग। और मोक्ष ही हमारा मूल है, हमारा मूल उद्देश्य है। सो विनय दूसरों का करना, गुरुओं का करना, उपचार विनय में तो गुरुओं का, बड़ों का और सबका आदर सत्कार सम्मान करना, ये होता है। मन वचन काया से धर्म की कहीं पर भी कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका मंदिर उपाश्रय कोई भी चीज हो उसका विनय करना। काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि चलो मंदिर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, चलो वॉशरूम जाके आ गए, पानी भी नहीं गिराएंगे अपन वहां, वो बदबू आए तो हमको क्या करना है, वो कोई भी देख लेगा। ये जो अविनय हम करते हैं छोटी छोटी चीजों में, हमारे मन में उस चीज के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है कि हमको उसको सही से रखना है। कहीं पर हम जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, गुरु महाराज को देख रहे होते हैं, दूर से हम गाड़ी में बैठे बैठे नमन करके निकल रहे होते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि इनकी दर्शन शुद्धि है, इनकी चरित्र की शुद्धि है, ये पहुंच चुके हैं, ये साधुपना ले चुके हैं, और हम तो अभी तक श्रावक भी क्या बने नहीं बने पता नहीं है हमको। एटलीस्ट उतर के हम उनकी वंदना कर सके, उनकी सारता पूछ सके, इतना विनय हम कर दें, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का तो ये सब लोग जानते ही हैं, साधु महाराज जब आते हैं तो उनका वैयावच करते हैं, उनकी गोचरी पानी का हम तैयारी करते हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। सोचिए वैयावृत्ति को अनशन से कितना दूर रखा है, कितना ऊपर रखा है, मतलब हम कितने पागल हैं, हम इतनी सारी तपस्या कर रहे होते हैं ये सोचकर कि सिर्फ तपस्या से। एक बात बताऊं आपको, शास्त्रों में लिखा है 100 वर्ष का एक साथ अगर आप उपवास भी कर लो तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान साधना में जुट जाओ और 48 मिनट तक अपने ध्यान को खींच सको, वहीं आपको केवल ज्ञान हो जाता है। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष केवल ज्ञान से ही होता है। केवल ज्ञान माने कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द साइमल्टेनियस नॉलेज ऑफ ऑल द टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ऐसा ज्ञान, और एक बात केवल ज्ञान के बारे में ये भी बताना चाहती थी मैं आपको कि काफी लोग ये बोलते हैं, अरे यार ये लोग तो इतना ज्ञान की बात करते, इतना समझे हुए लोग हैं, लोग इनसे हमको दूर रहना यार, इतना ज्ञान हमसे लिया नहीं जाता यार। समझना ये बात, जब इतनी छोटी बात, इतनी छोटा ज्ञान हम ले नहीं सकते तो केवल ज्ञान को लेंगे कैसे? सामने से होकर हम मना बोल रहे भैया मेरे को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, ज्ञान ही नहीं लेना है मेरे को, ये एटीट्यूड छोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब ज्ञानी हो, ज्ञानी का समागम मिले, गुरु का समागम मिले तो जानना, सुनना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे ही ज्ञानी के पास जाते हैं, हमारे कर्म क्षय का वो रास्ता बताते हैं, हमको तरीका बताते हैं कि हम मोक्ष को कैसे पाए। ये बात अलग है कि हम समझते ही नहीं है मोक्ष क्या है और क्या होना है वहां पर, इसीलिए हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ज्ञानी के पास जाना, उनकी वयावच करना और उनसे ज्ञान लेना, ये बहुत बड़ा तप में गिना जाता है। रेंडरिंग सर्विसेज टू आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्ष मतलब जो नए दीक्षार्थी होते हैं वो ग्लान, गण, कुल, संघ, और फिर साधर्मिक जो होते हैं उनकी भी वैयावृत्ति होती है। साधर्मिक का ये गलत मीनिंग जनरली प्ररूपित है समाज में। साधर्मिक को लोग लेते हैं कि लोअर इनकम पीपल, फाइनेंशियली लोअर कैटेगरी वाले पीपल। इट डज नॉट मीन दैट। साधर्मी मीन्स समान धर्म वाला। मेरे लिए मेरे जैसे धर्म करने वाला समान धर्मी होता है। वो पैसों से क्या है वो मैटर नहीं होता है, उसके अंतरकरण में परमात्मा बसे हैं, मेरे भी अंतरकरण में परमात्मा बसे, तो वो मेरा सहधर्मी हुआ। वो भले पैसा वाला हो ना हो, उससे कोई मतलब ही नहीं होता इस चीज में। तो साधर्मी का जो जनरल मीनिंग हमने डाल के रखा है, प्लीज उसको करेक्ट करना चाहिए, हमको यूसेज में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्ड का मीनिंग ही कुछ और है साधर्मी का। एंड देन जनरल साधुओं की भी हमको साधन वैयावृत्त करना चाहिए। उसके बाद आता है व्युत्सर्ग। ये बहुत बढ़िया चीज है। तप अगर आप समझें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है व्युत्सर्ग। इसमें बोलते हैं अबैंडनमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोसेशंस। त्याग करने की बात आती है। जो 14 नियम हम लेते हैं, 12 व्रत हम लेते हैं, ये सब इसी की कैटेगरी में फॉल होते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम खाना खाने, जैसे एग्जाम्पल दे रही थी ना कि हम एकाशना करने गए हैं और संघ में एकाशना हो रहा है, हम हमारा बैग लेके जाते हैं, हमारे खाने के आइटम्स लेके जाते हैं, हमको वो पानी नहीं भाएगा, हम हमारे घर से पानी लेके जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वहां पर हमारा जो इंटरनल पोसेशन है ना, इंटरनल लोभ है ना, राग है ना, वो खत्म ही नहीं हुआ खाने के प्रति। उसको तोड़ने का जो काम है वो होता है व्युत्सर्ग। वो तपस्या व्युत्सर्ग में आती है। अपने अंदर के जो रहे हुए कषाय, 16 बाह्य और 9 आंतरिक कषाय,
नहीं 9 आंतरिक 16 बाह्य कुछ ऐसे ही है। तो ये कषायों को जो तोड़ने का काम हम करते हैं, मतलब पोसेशंस को तोड़ने का काम करते हैं, कषाय को तोड़ना और पोसेशन, जैसे धन धान्य खेत वस्तु सुवर्ण, ये सब जिसपे हमको मोह होता है, जिसका हम प्रतिक्रमण में आलोचना लेते हैं कि मैंने इन सब पे मोह रखा, इन सबको यूज किया, वो सारी बाह्य पोसेशंस, बाह्य और आंतरिक, ये दोनों को हम त्याग करें, उसका नाम होता है वित्सर्ग। और ये बहुत बड़े तप में गिना जाता है। आप सोचिए, अगर आप 12 व्रत में कोई एक व्रत ले लो छोटा मोटा, या 14 नियम में कोई एक नियम ले लो, वो भी तप होता है और वो बड़ा तप में गिना जाता है, क्योंकि आप उसके प्रति का राग का त्याग करते हो। आप यू लीव दैट अटैचमेंट, यू रिनाउंस दैट अटैचमेंट टुवर्ड्स दोस एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स एंड टुवर्ड्स योर बॉडी ऑल्सो। इंटरनली आपके जो कषाय होते हैं, जैसे कोई मुझे तारीफ करे मेरी, तो मुझे बहुत मजा आता है, अरे वाह उसने मेरी आज तारीफ की। क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग कैसा होता है पता है, FB पे एक पोस्ट डाला, इंस्टा पे एक पोस्ट डाला, 50 बार तो चेक करते कितने लोगों ने उसको लाइक किया, किसने क्या कमेंट किया। ये कितना बड़ा लोभ हमको हमारे प्रति, हमारे ही प्रति का राग है। वी लाइक ourselves सो मच, इसीलिए फिर कोई लाइक नहीं करता ना तो हमको द्वेष आता है, उनके ऊपर क्रोध आता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है राग को निकालना अंदर से। खुद के प्रति राग होता है ना तो दूसरों के प्रति द्वेष 100% आता है। राग को निकालना वही भाव वित्सर्ग होता है। वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट थिंग्स। और भाव वित्सर्ग के 3 प्रकारों में कषाय, संसार और कर्म, तीनों का हमको अंदर से त्याग करना चाहिए। स्वाध्याय उसके बाद आता है, लास्ट बट वन है ये स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स विच लीड्स टू स्टडी ऑफ द सेल्फ। स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारी आगम है, या जो हमारी दूसरी कमेंट्रीज है, या जो हमारे आचार्यों ने जिसके बारे में लिखा है, वो सारी स्क्रिप्चर्स जो है, एक्चुअली बेसिकली स्क्रिप्चर्स का मतलब तो आगम ही होता है, बट उसके अलावा जो भी किताबें हैं वो भी पढ़ते पढ़ते स्वयं को जान पाए, उसमें हेल्प करती है, वो होती है स्क्रिप्चुअल स्टडी। तो उसमें आता है वांचना, प्रचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वांचना क्या होता है, सोचिए ना, अगर किताब को पढ़ने का हम काम कर ले वो तप हो गया। और ये क्या बात हुई, मैं खाली धार्मिक किताब पढ़ूं तप हो गया, कैसे हो जाता है, क्योंकि जब तक आप किताब पढ़ रहे हैं यू टोटली फोकस देयर, आप उस वक्त खाना नहीं खा रहे होते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं होते, दुर्ध्यान में नहीं जाते हैं, किसी के गप्पे नहीं मार रहे होते हैं, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग। स्वाध्याय कैसे आपको हेल्प कर रहा है, देखिए, बिना समझे ही इतनी सारी तप की क्रियाएं उस एक तप में आ गई, खाली जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। अभी पिछले 1 घंटे से आप लोग मेरे साथ हो, 1 घंटे में मेरे ख्याल से हार्डली 2-3 लोगों ने पानी का ग्लास उठा के पिया है, बाकी तो सब चुपचाप से बैठे हैं। 1 घंटे से सबका अनशन ही चल रहा है विदाउट इवन रियलाइजिंग। और हम सोच रहे हैं कि ये सब में क्या रखा होता है। वांचना, प्रचना, परावर्तना। प्रचना का मतलब है कि जैसे हम पढ़ते हैं, हमको जो भी कोई डाउट आए, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, डाउट आए, उसके बारे में पूछना, उसके बारे में डिस्कशंस करना, वो सबको रिजॉल्व करना, वो होता है प्रचना। एक डाउट पूछना कितनी बड़ी बात है, ये देखिए उसको तब की कैटेगरी में लिया गया है। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि हम किसको तब सोच रहे थे और तब कहाँ तक कहाँ तक लिया गया हुआ है। परावर्तना, रिवाइजिंग द स्क्रिप्चर्स, जो हमने पढ़ा उसको वापस पढ़ के उसको वापस दिमाग में उतार के अनुप्रेक्षा करना, उसका कॉन्टेम्पलेशन करना और उसकी चर्चा करना लोगों के साथ, उसको लोगों को सिखाना, वो होता है धर्म कथा। और ये सब हमको हमारे अंदर की तरफ लेके जाते हैं, हमारे इंटरनल स्वाध्याय, हमारे इंटरनली हमको खुद को, सेल्फ को समझने में हेल्प करते हैं। सेल्फ को समझने में ये कैसे हेल्प करते हैं ये जानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में भगवान ने मोक्ष का मार्ग दिया है। मोक्ष का मार्ग देते वक्त भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया है। मोक्ष के मार्ग में भगवान ने 9 तत्वों का विवरण दिया। 9 तत्वों में से कौन जीव, कौन अजीव, क्या आश्रम, क्या पुण्य, क्या पाप, ये बताया। जब हम समझ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है ना, उससे हम थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, अपने आप को दूर रख पाते हैं इन चीजों से, अननेसेसरी चीजों में। उसमें मेरी आत्मा का क्या है, ये क्लियर क्वेश्चन आ जाता है। मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा हो सकता है, पर ये आत्मा तो मैं हूँ। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। मैं जो आत्मा, मेरा जो शरीर, मैं जो हूँ, मैं एक्चुअली आत्मा हूँ। ये जो बाहर दिख रहा है ये मेरा शरीर है, ये जो बाहर चीजें हैं ये बिलोंगिंग, दे आर ऑल बिलोंगिंग टू माय बॉडी, नॉट टू माय आत्मा। मैं यहाँ हूँ तब तक ये सब मेरा है। द मोमेंट आई लीव एंड गो फ्रॉम हियर, ये कुछ मेरी आत्मा के साथ आ ही नहीं रहा। आता क्या है, मेरे अंदर के जो भाव थे वो ही मेरे साथ चलते हैं, मेरे अंदर के जो कर्म मैंने संचय किए वो मेरे साथ चल रहे होते हैं। भावे भावना भाविये, भावे केवल ज्ञान, माने कि आप अगर अच्छी भावना बातें हैं दूसरों के लिए, योर थॉट्स आर सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छी भावना बातें हैं तभी आप केवल ज्ञान को भी पा सकते हैं। इफ यू आर हैविंग faulty thoughts, wrong thoughts, if you are having degrading thoughts, if you feel wrong about others, ये आपको भी नीचे ही गिराता है, ये आपको ऊपर लेके नहीं जाता। जब तक आप सही और अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच में नहीं रहते,
यू कैन नेवर अटेन व्हाट भगवान इज आस्क्ड, भगवान इज वांटेड अस टू डू, यू नो, कभी हम वो पा ही नहीं पाएंगे। लास्ट आता है ध्यान। नाउ ध्यान इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, मैं ज्यादा इस पे लेना नहीं चाहती हूँ बिकॉज ध्यान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, क्योंकि ध्यान से ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान नहीं हो तो केवल ज्ञान होता ही नहीं है। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसी से हमारा केवल ज्ञान होता है। शुक्ल ध्यान के अंत में केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये जो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, जो बिगिनिंग के दो ध्यान हैं, ये संसारी जीवों के लिए, जो जिनका दिमाग पूरा दिन अपने पोसेशंस, अपनी एक्टिविटीज, अपनी चीजें, मेरा 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 जो करते हैं ना, उनके लिए ये अर्थ ध्यान, जो वो सोचते हैं ना, वो सारा अर्थ ध्यान में आता है कि यू नो फोकसिंग योर एनर्जी ऑन मटेरियल थिंग्स। और फिर गलत गलत उसके बारे में रोना धोना करना, अरे यार ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मेरे को तो ये चीज चाहिए थी लेकिन ये मेरी देरानी को मिल गया, अरे वो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन मुझे वो ही ला कर दिया इन्होंने, अरे यार ये तो मैं नहीं मानती यार, ये नौकरानी आज काम छोड़ के जा रही है, नहीं शी कैन नॉट गो, मैं झगड़ा करने वाली हूँ उससे। ऐसी ऐसी जो चीजें हमारे थॉट्स में आती है ना, ये सारा का सारा अर्थ ध्यान है, जो हमारे संसार को बढ़ाता है, हमारे संसार के रिलेटेड होता है। और इन ध्यानों में हमको हमेशा कषायों को कम रखना है। जो मिला वो हमारे कर्मों से मिला है। इट्स ओके टू गेट व्हाटएवर वी हैव गॉट एंड इट्स ओके टू लूज व्हाटएवर वी आर लूजिंग। ये एग्रीमेंट जब हम अपने साथ करते हैं ना, तभी हम अर्थ ध्यान से बाहर निकल पाते हैं। रौद्र ध्यान होता है जब हम क्रूअल नेचर के हो जाते हैं, वायलेंट नेचर के हो जाते हैं, और ये नरक निगोद के बंधन का कार्य होता है। कई बार जनरली हमारे से तो नहीं होता इतना, हम रौद्र ध्यान में उतरते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सातवीं नरक तक का आयु बंद कर लेते हैं जीव, जब उनमें ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये क्रुअलिटी, ये वायलेंस। इन सब के चार चार प्रकार बताए हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। मैं धर्म ध्यान में जाऊंगी सीधा, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता भी है। तो धर्म ध्यान में हम ये देखेंगे कि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा वो चीज है जो भगवान ने हमको आगमों के रूप में दिया है, और हम उसके ऊपर चिंतन करें। चिंतन का जो चिंतन ही ध्यान होता है एक्चुअली, जो हमारा कॉन्टेम्पलेशन होता है, जो हमारा थॉटलेसनेस, हमारा रिजल्ट है, वो हमारे ध्यान से ही आता है। ये जो कॉन्टेम्पलेट करते हैं जब हम भगवान की बातों पे, तो ऑटोमेटिकली हमको मालूम पड़ता है कि भगवान कैसे जीव रहे होंगे ना, कि उन्होंने खुद ने गौशालक को सिखाया तेजोलेशा कैसे छोड़ती है। भगवान को तो तेजोलेशा छोड़ने का मालूम था कि मुंह से कैसे आग निकालते हैं, जो हम चाइनीज ड्रैगन को देखते हैं ना, मुंह से आग निकालते हैं, जैसे हमारे भगवान को आता था, ये विद्या उनके पास थी। तो जब तेजोलेशिया छोड़ने की विद्या उनसे गौशालक ने मांगी, तो भगवान ने खुद ने उसको सिखाई, ये लेशिया, तेजोलेशिया छोड़ने का सीन। और जब भगवान केवल ज्ञान के बाद संपोसरण में थे, तेजोलेशिया उनके ऊपर उन्होंने ही छोड़ा, यू नो, गौशालक ने ही छोड़ा। फिर भी भगवान कैसे उसके ऊपर एक मिनट का भी द्वेष नहीं करते। ये हमारा सूत्र आता है, पता है, कमठे धर्मेन्द्रिय चे सूचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पाशनाथ श्रेय। इसका मतलब क्या है? कमठे धर्मेन्द्र च, कमठ भी धर्मेन्द्र भी, किसी के प्रति भगवान को न राग है न द्वेष है। कमठ जो कर रहा है वो अपने कर्मों से कर रहा है, और धर्मेंद्र जो कर रहे हैं वो अपने कर्मों से कर रहे हैं। ना तो इनके लिए अच्छा तूने मेरे लिए अच्छा कर दिया, तू तो मेरा अच्छा है, तू तो मेरा हितकारी है, ऐसा बोल के ना उनको गले लगाया ना इनको दुत्कारा। पर पार्षद भगवान के लिए तो दोनों इक्वल थे। वैसी भावना हम में आए, उसका कॉन्टेम्पलेशन, उसका थॉट हम कहाँ से निकालते हैं? भगवान के आगमों को पढ़कर, भगवान की वाणी को सुनकर, साधु संतों के समागम में रहकर। फिर अपाय धर्म ध्यान बोलते हैं, जहां पर हम नेचर, हमारे अपने नेचर जिसमें हम मिजरी और अनहैप्पीनेस की ओर जाते हैं, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हम कर्मों के बारे में सोचते हैं कि कर्म का फ्रूशन कैसे होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। फिर हम संस्थान, लोक संस्थान के ऊपर चिंतन करते हैं कि इतना बड़ा लोक, 14 रज्जू लोक है जिस लोक में, उसमें हमारी क्या औकात, हम कितने छोटे हैं, हमारे पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, ना बोलने का ना करने का। अगर एक ड्रोन लगा के, या वो हेलीकॉप्टर व्यू, या वो अभी अपने मैप्स में व्यू आता है, हमारे घर का भी व्यू हम देखने जाए तो कितना जूम इन करते, तब कहीं एक इतना सा घर है। तो सोचो इतने बड़े संसार में, इतने बड़े 14 रज्जु लोक के लोक स्वरूप में हमारा क्या तो वैल्यू है, हम तो कितने तुच्छ हैं। फिर भी हमारे अंदर कितना दुनिया भर का घमंड भरा। हम सोचते हैं हमारे अंदर एक संसार है, हमारे अंदर बहुत कुछ है, हमको बहुत ज्ञान है। ये पूरे लोक स्वरूप का जब हम चिंतन करें तो इट गिव्स अनदर लेवल ऑफ कंटेम्पलेशन एंड अनदर लेवल ऑफ चेंजिंग आवर डिजायर्स एंड आवर थॉट्स। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे बेस्ट ध्यान है शुक्ल ध्यान, और सबसे बढ़िया तप में गिना जाता है शुक्ल ध्यान। आई विल नॉट टेक दिस बिकॉज ये
बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं जहाँ पे यू फोकस ऑन वन थिंग एंड देन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वन टू अनदर, वर्ड टू मीनिंग, मीनिंग टू वर्ड, या फिर हम कोई कॉन्टेम्पलेशन पे ही नहीं है, या फिर हम शरीर की कोई क्रिया में ही नहीं है, या छोटी क्रियाएं लघु अक्षर की क्रिया मात्र करते हैं, वो सब चीजें इसमें है। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड बिकॉज हमारा टाइम उतना नहीं है। आई हार्डली हैव 3 minutes टू वाइंड अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन। तो मैं यही बता रही थी कि उत्तरोत्तर तप में कर्मों की निर्जरा का बल ज्यादा है। अपने आप को एलकेजी में रखना बंद करें। स्टार्ट फ्रॉम अनशन, यू हैव टू प्रोसीड अहेड। कितने सालों तक उसी कैटेगरी लेवल में हम रहना चाहेंगे? वी नीड टू गो अहेड, वी नीड टू मूव अहेड। बाकी चीजों पे आइए, कॉन्टेम्पलेशन में आइए, अपने ध्यान में आइए, स्वाध्याय करिए, विसर्ग करिए, अपने पोसेशंस के प्रति जो अपना राग है उसको छोड़िए। पोसेशन आंतरिक भी होते हैं, जैसे पैसा होता है लेकिन यू नो गहने हमारे होते हैं और गहने के प्रति हमारा लोभ होता है कि ये मेरा है तो मैं मेरी बेटी को भी नहीं दूं पहनने, ये कपड़े मेरे हैं तो मैं उसको दिखाऊं भी नहीं। कई लोगों का ऐसा होता है कि मुझे कुछ अगर बनाना आए तो मैं तो उसकी रेसिपी भी किसी से शेयर नहीं करूं क्योंकि वो मेरा है ना। ये नहीं समझते हम कि ज्ञान हमारा हो ही नहीं सकता है जब तक संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हो। सारा दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है ये सिर्फ पासिंग द पास चल रहा है, ये कोई हमारा ज्ञान होता ही नहीं है। केवल ज्ञान ही हमारा स्वयं की आत्मा का ज्ञान होता है। ऐसे देखा जाए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों ही सेंसेस के ज्ञान है। अवधि और मन परवय ज्ञान अपने आप के होते हैं, लेकिन सही एकदम परफेक्शन में अगर हम अपने आप को देखना चाहें तो केवल ज्ञान ही अपना ज्ञान है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है कोई ज्ञान, कोई तरह का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतना ज्ञान है। चलिए, दूसरी ऑस्टेरिटी, दूसरे तप जो हम करते हैं, इन सब से हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा आत्मलक्षी होना बहुत जरूरी है। एकाशना व्याशना एमएल नेवी जो आपने समझ लिया होगा कि क्या चीजें मैं इतनी देर से बता रही हूँ तप के मामले में। तो कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब कुछ जो भी हम करें आत्मा को लक्ष्य में रख कर करें। पुण्य उपार्जन बहुत नॉमिनल चीज है, उसके लिए न करें, उल्टा अपने आत्मा की विकास का, अपने अध्यात्म के विकास के कार्य के लिए करें ताकि हम मोक्ष को पहुंच सकें। और एक छोटा सा मेरे को टाइम देना था, किसी ने मुझे पूछा था कि टाइमिंग बता देना कि नवकारसी आती है 2 घड़ी के बाद सनराइज की, दैट इज 1 घड़ी होती है 24 मिनट्स की, तो 2 घड़ी होती है 48 मिनट्स में। पोरसी होती है 1 प्रहर पे, 1 प्रहर होता है 3 घंटे का। साढ़ पोरसी होती है 1.5 प्रहर पे सनराइज के बाद। और परिमुड होता है 2 प्रहर, 2 प्रहर माने 6 घंटे के बाद होती है परिमुड, और 9 घंटे के बाद आता है अवध। अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 9 o'clock 3 घंटे होते हैं, 12 बजे 2 प्रहर हो जाता है, और फिर 3 बजे होता है अवध। जो अवध का पचकान लेते तो सनराइज अगर 6 बजे हुआ तो 3 बजे आप कुछ भी खा पीते हैं अगर अवध का पचकान लेते हैं। 4 प्रकार के आहार, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, असनम, पाणम, खाइमम, साइमम। असनम वो होता है जो अनाज हम खाते हैं वो सारे, पाणम जो होते हैं जो सारे लिक्विड्स होते हैं, खाइमम वो होते हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लिए जाते हैं, मेडिसिन, औषधि वगैरह, और साइमम होते हैं मुखवास। और हम सबसे बड़ा जो इस पर्व में करते हैं वो होता है क्षमापना। पर्युषण पर्व की सबसे बड़ी आराधना होती है क्षमापना, जो हमारे प्रायश्चित में हम करते हैं तब आ ही जाता है क्षमापना। जस्ट बिकॉज हम पर्युषण कर रहे हैं हमको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, अदरवाइज सारी दुनिया। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई वाज लिसनिंग टू एक ये चल रहा था, एक इवेंट चल रहा था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जहां पर जैनिज्म के ऊपर एक लेक्चरर ने 1 घंटे का भाषण दिया। बिलीव मी, उतनी नॉलेज उसको 1 घंटे में जो उसने शेयर की ना, मुझे उसको गैदर करने में जैनिज्म के बारे में 1 साल लग गया था कि जैन साधु कितने हैं, कौन क्या पालता है, जैनिज्म के डिवीजन कितने हैं, कब ये डिवीजन हुआ, भगवान कहाँ गए, ये वो पता नहीं, इतनी सारी डिटेल्स उन्होंने 1 घंटे में दी। वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका के रहने वाले हैं और उनके वहां पर रिलीजियस स्टडी चल रहा है, तो उसमें उन्होंने, आज सुबह मैंने वो अटेंड किया था वो इवेंट, तो आई रियलाइज, उनकी शाम का टाइम था और मेरा दिन का टाइम था, तो आई रियलाइज कि जैनिज्म को इतना लाइटली हम ले रहे हैं, पर्युषण को हम इतना लाइटली ले रहे हैं, और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया पर्युषण का, माइंड ब्लोइंग था। हम भी नहीं समझ पाते हैं कि हमको पर्युषण में एक्चुअली करना क्या होता है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा करना तो हमारा मूल धर्म है, हमारा मूल कार्य है। क्षमा में ही हम सारे ग्रंथियों को तोड़ते हैं। अगर हम ग्रंथि न तोड़े, हमारे अंदर में रहे हुए राग द्वेष को न तोड़े, लेट को न करें, तो बार बार उसी में कर्म बंधन चिपकता जाएगा, उसी में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, और ये बढ़ बढ़ के बड़े कर्म अनंतानुबंधी कर्म हो जाते हैं। क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। एक्सट्रीम पेशेंस जब हम डेवलप कर पाते हैं क्षमा।
हम फॉरगिव कर देते हैं उस मोमेंट के लिए, लेकिन हम उसको फॉरगेट नहीं करते हैं, लेकर चल रहे होते हैं, और 4 साल बाद भी हमको याद रहता है, अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला था, याद है तूने मेरे साथ ऐसा किया था, ये सब हम सोचते रहते हैं। ये अगर हम फॉरगेट ना करें, ये अगर फॉरगेट ना करें हम, तो फॉरगिव करने का मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि तभी वो नॉट्स निकलेंगे, तभी वो ग्रंथियां टूटेगी, ग्रंथियां टूटने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन का मतलब है राइचियसनेस, राइचियसनेस का मतलब है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, राइट श्रद्धा, मतलब सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, राइचियस नॉलेज, राइचियस परसेप्शन एंड राइचियस कॉन्डक्ट। एकदम जो भगवान की वाणी में सही बताया गया उसको हम जानना हो, तो सबसे पहले अपने क्रोध मान माया लोभ को तोड़ना पड़ता है, सारी ग्रंथियों को छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही हमारा ये पर्युषण पर्व खत्म होता है, उसके अगले ही दिन 10 लक्षण पर्व चालू होता है, और उनमें तो शुरुआत ही उत्तम क्षमा से होती है। उत्तम माने सम्यक क्षमा, सबसे पहले वो शुरू करते हैं क्षमापना से। मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया भी था कि कैसे पर्युषण पर्व की सेलिब्रेशन होती है, क्यों होती है, कैसे जीव बिलों से निकलकर बाहर आते हैं, ग्रीनरी देख के कैसे एक दूसरे को क्षमा करते हैं। तो ये उत्तम क्षमा सबसे पहले करने का कार्य होता है हमारा, और ये ऐसा एक कार्य है जिससे हम स्पिरिचुअली आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पूरा सोसाइटी आगे बढ़ सकता है इस चीज को लेकर। तो अभी आपकी आराधना में आप विराधना न लाए, उसके लिए मैंने आपको तपस्या के बारे में बताया। बाकी तप आराधना जो आप पर्युषण में करते हैं, वो तो जनरली बोला जाता है कि मंदिर मार्गी में तो तेला करके आप संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो हो जाता है, पर दिगंबरों में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। श्वेतांबर मंदिर मार्गी में, स्थानकवासी में रूल्स ऐसे कुछ होते हैं, बट दिगंबरों में ये भी रूल्स नहीं होते 10 लक्षण के लिए। उनको जो पालना है वो पाल रहे होते हैं, जितना हो सके उतने की पालन करते हैं, बस इतना ही होता है धर्म आराधना में जो भी करना है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वी आर ओपन फॉर द सेशन। Priyanka, you can unmute if anybody wants to ask a question, and अगर आपको मैंने कुछ भी गलत लगा मेरे कहने में तो वो 100% मेरी मिस्टेक होगी, लेकिन अगर आपको सही लगा है तो ये परमात्मा के केवल ज्ञान की बातें हैं, और परमात्मा के द्वारा प्ररूपित बातों को जो गंधर्वों ने और जो आचार्यों ने उत्तर लिख के पास ऑन किया, उसी में से मैंने लिया है। इसमें ना सही ना गलत, गलत हो तो वो मेरा होगा, सही होगा तो परमात्मा की कृपा से मैंने आपको पहुंचाया है। ज्ञान का क्षयोक्षम इसको नहीं बोलते हैं। जब अगर मैं बोल पाऊं तो काफी लोगों ने मुझे बोला तो ज्ञान का क्षयोक्षम है, ज्ञान का भंडार है, ऐसा नहीं होता है। जब तक मैं आचरण में ना जीऊं तो वो मेरा ज्ञान मेरा है ही नहीं, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान उसको आचरण में जी पा रहे थे। जब आचरण में जीते हैं तभी वो ज्ञान अपना है, अदरवाइज तो ये सारा झूठा ज्ञान है जो पासिंग द पास हो रहा है, एक से दूसरा पास कर रहे हैं, क्या पता ये भव खत्म हो और मैं ये सारा भूल भी जाऊं। इसीलिए ज्ञान के अर्थ को समझना, सूत्रों के अर्थ को समझना, अपने व्यवहार में उतार लेना, ताकि भवों तक हम आगे इसको लेके जा सकें। मेरी आपसे विनती रहेगी कि इस पर्युषण में, आराधना में इतना जुड़े कि विराधना कहीं ना करें। आराधना के नाम पर आप जितना करना चाहे करें, विराधना में प्लीज कहीं ना जुड़े, कहीं किसी तरह से खुद को और दूसरों को कष्ट ना दें। काय क्लेश जरूर करें, लेकिन कष्ट ऐसा ना दें कि आपको कर्म बंधन हो जाए। And now we are open, so if you have any doubts, you can clarify them. Very well said, Yeah, Sunita. very beautifully explained. Yes. Sunita, I just want a little more light on Rasbari Gyan, Rasbari Tyag. Okay, रस परित्याग का मतलब होता है आप अपने रसों का, अपने टंग जो है ना, टंग पे टेस्ट बड्स है, टेस्ट बड का एक एक टेस्ट जैसे जैसे मुंह पे लगता है ना, टंग इज एबल टू सी। जैसे अभी साइंस में बोलते हैं आगे के जो टेस्ट बड्स होते हैं टंग पे, वो दूसरे चीज के लिए आते हैं, साइड वाले दूसरे चीज के लिए। जैसे खट्टा खाए तो साइड में पता चलता है, तीखा खाए तो पीछे पता चलता है। ईच टेस्ट बड रिलीजेस अ सेक्रीशन। जैसे ही कुछ खाते हैं अपन तो वो जो टेस्ट होता है उसके अनुसार टेस्ट बड से सेक्रीशन निकलता है। जब ये सेक्रीशन निकलता है ना, तो ये रसायन है, these are chemicals that the body is releasing। तो ये जब निकलता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द रिलीज ऑफ दीज थिंग्स हमारी चिंतन की कैपेसिटी, हमारी गुड्डी विकास भाग ही नहीं रही अभी। कैपेसिटी होता है। तो आत्म ध्यान में अगर लगना हो तो इन रसों को जो हमारा जीभ टेस्ट के लिए निकालता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको कम करना बहुत जरूरी होता है। तो वी नीड टू कंट्रोल ऑन द रस दैट वी लाइक, द टेस्ट दैट वी लाइक। और ऐसे 6 प्रकार के रस का महाविगय के हिसाब से त्याग। रस तो ऐसे बताए हुए हैं, अब जो अपन को पसंद आता है वो सब हमारे लिए रस ही होता है। काफी लोगों को कशेला भी पसंद आता है तो वो उनके लिए रस ही होता है। तो रस हमारे लिए ऐसे बताए गए कि जो भी चीजें हमको पसंद आती है वो सारी हमारे लिए रस ही हो जाती है। लेकिन
ऐसे हमको विगय त्याग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर और तली हुई आइटम्स का। तो मिठाई छोड़ना, कभी कभी नमक और तले हुए छोड़ना, कभी घी और तेल छोड़ना, कभी ऐसी ऐसी चीजों को छोड़कर अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आना कि ये टेस्ट बड्स जो है, इनके जो सेक्रीशन है, जो रिलीज ऑफ सेक्रीशन होता है, उसको हम रोक सके। इसको रोकने से आत्मा के अंदर में जाने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ती है। हमारे चिंतन हम आत्मा की ओर ले जा सकते हैं। नहीं तो हम इसी में रस आता रहता है, बार बार मुंह से वो पानी आता रहता है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा ना इस चीज को, कि जब हम मीठा देखते हैं और बहुत देर से कुछ खाया नहीं, फट से मुंह में पानी निकल के आता है। दैट सेक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स हैपेंस बिकॉज वहां पर वो टेस्ट बड है जो सेक्रीट करते हैं उन चीजों को देखकर। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है सेक्रीशन, वैसे वैसे हमारी उसके प्रति हमारा ध्यान चले जाता है, ना कि हमारी आत्मा के प्रति। आत्मा उन्मुखी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आत्मा की बढ़ोतरी के, आत्मा में स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन आने के लिए हमको रस का त्याग करना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन था, इफ वी मिक्स, जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना है कि दे मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड eat it as one taste. They don't take the taste of all individual khana, but they mix everything. Is that a type of ras tyag, or is that not अगर आपने accepted? वो सब मिला के गट्टा चूर लिया और उसके बाद नींबू निचोड़ लिया, उसके बाद गुजिया डाल लिया, उसके बाद बोला कि मैं एक ही आइटम खा रहा हूँ, तो वो रस परित्याग नहीं होता है। लेकिन अगर आपने सब कुछ मिला लिया और त्याग के हिसाब से लिया, लेकिन रस के तो त्याग हुए ही नहीं है उसमें, ये तो रस परित्याग में आता ही नहीं है, क्योंकि आपके तो सारे फ्लेवर्स हैं उसमें। आपका उसमें तीखा होता है, खट्टा होता है, सब होता है, तभी तो आप मिक्स करते हैं। आप रोटी और रोटी चूर के खा लेंगे, बोलेंगे क्या मेरा हो गया खाना, नहीं करते ना। रोटी में सब्जी मिलाते हैं ना, अगर गट्टा चूर भी रहे तो मिला भी रहे होते हैं, तो रस तो त्याग हुआ नहीं ना आपका उसमें। और रसों को तो ये छह विगयों का त्याग मेजरली माना गया। तो अगर आपका घी नहीं डाला हुआ है उस दिन उस गट्टे में, डेफिनेटली उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रस को छोड़ने की। डेफिनेटली 100% आप देखिए, क्योंकि कई बार इट टोटली डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल एक्चुअली। पता है, कई बार लोग ऐसे होते हैं जो एक एक आइटम का त्याग करना चाहते हैं, एक एक विगई का त्याग करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सब कुछ समझते नहीं है इन चीजों को, तो उनको लगता है कि सारा एक साथ मिक्स कर लिया, एक साथ खा लिया, मेरे को कोई टेस्ट का मतलब नहीं। पर अब उसमें समझना, अगर आपने सब्जी में नमक नहीं डाला और आपने गट्टा मिला लिया हो सब कुछ, और ऐसे कैसे चुपचाप खा लिया, तब मीन्स आपके मन में रस का त्याग का भाव है और उसका आपको फल जरूर मिलता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, के टेक्स्ट में यही दिया, हम यही करेंगे। इट इज एक्चुअली ऐसा है कि अपने अपने ऊपर पर्सनली एक एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर में कितने कषाय, आपके अंदर में उसके प्रति कितना राग है। अगर आपको टेस्ट का राग ही नहीं, आपने कुछ एडिशंस नहीं किया, वो कितना भी जहरीला भी हो, आपने चुपचाप खा लिया, दैट मींस आपके रस का त्याग। Yeah, understood. Thank you so much, Sunita. थैंक यू। हेलो, नमस्ते सुनीता जी। मुझे ये जो आपने समझाया था ना, नौकासी, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, ये 3 पोरसी का जो पचकान है, अवध का पचकान, मुझे वो सीखना है। वो कैसे है, किसमें है, कैसे लेते हैं वो पचकान? अगर आप मंदिर मार्गी हैं तो पचकान तो आपके पास बुक में होगा। नहीं, मंदिर नहीं है, स्थानक वासी है। तो स्थानक में भी तो आपके प्रतिगमन सूत्र के आजू बाजू में ही आ जाता है ना, बुक्स में ही आ जाता है। आप मेरे को इस इवेंट के बाद कांटेक्ट करें ना, मैं आपको सूत्र दे देती हूँ। सूत्र तो सबके पास है। ओ, मतलब अपन जो पचकान लेते हैं ना, पड़ी मुठ का, पूरी मुठ का ले लेते हैं, तो वैसे अवध का बोल के करना है या उसमें अलग है? नहीं, उसी के पीछे अवध बोल सकते हैं ना आप नवकारसी से लेके अवध तक एक ही सूत्र में बोल सकते हैं। आपको क्या करना, आपके ऊपर डिपेंड। जैसे अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लेते हैं पचकान। मैं ब्यासना नवकारसी से पानी पालती हूँ, मेरे को पानी पीना होता है सुबह, उनको नहीं पीना हो रहा होता है, तो मैं नवकारसी, पोरसी, 60 पोरसी सब कुछ बोलती हूँ। जिसको जो लेना है पचकान, वो उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से ले लेता है। एक ही सूत्र में सारा सूत्र बोल सकते हैं। पर परिमुख बोलते हैं ना, जब अपन 2 पोरसी लेते हैं ना, उसमें महैत्रगारनम आता है, तो इसमें ऐसा कुछ शब्द है क्या? महैत्रगारनम हम 2 पोरसी में बोलते हैं, फिर ओसीरामी। हाँ, इसीलिए बोल रहे हो ना कि सारा सूत्र मैंने एक साथ बोला है। मैं नवकारसी, पोरसी, 60 पोरसी सब कुछ एक साथ बोल रही हूँ, तब महैत्रगारनम आता ही आता है ना। मैं बोल रही हूँ उसमें, जब मैं सूत्र बोल रही थी ना, तो उसमें सारे ही प्रहर के, मतलब 48 मिनट का भी, 1 प्रहर का भी, 2 प्रहर का भी, 3 प्रहर का भी, 1.5 प्रहर का भी, सबका सूत्र एक साथ ही बोल रही हूँ मैं। तो जिसको जो लेना वो ले रहा होता है, तो वो सारा सूत्र टोटल में ही आएगा। यस, किसी और को कोई डाउट? Anybody else?
I think you've explained very beautifully, Sunita. So, Thank you. If anybody else has any more doubts, आप पूछ सकते हैं. शानू, पूर्वी, प्रियंका, बृंदा, anybody. किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, बबीता जी, चंदू जी, जिसको भी जो भी समझ में नहीं आया हो, और you have anything else that you want me to know, मुझे नहीं पता तो I will get it answer from somebody else, मैं आपको बात पहुंचाती हूँ कि कैसे क्या है. अगर आप कुछ भी है तो मुझे पूछिए, बिकॉज इसको भी तब बोलते हैं धर्म में. स्वाध्याय के बाद जब आपको डाउट आता है ना, मतलब वांछना के बाद रचना, परावर्तना, ये सब कुछ आता है, इसमें इसको भी तब में लिया जाता है. सो बिंदास पूछिए. सुनीता, आई हैव अ डाउट. सुनीता, यस. जब गर्म पानी पीते हैं ना अपन, लाइक अभी समझ ले, वी हैव नॉट डन TVR कर रहे हैं, एवरी डे यू ड्रिंक हॉट वाटर. तो जस्ट वांटेड टू नो, वी हैव दैट प्रहर का टाइम होता है, 9 प्रहर समथिंग लाइक दैट, लाइक यू नो, सुबह का एक मॉर्निंग जो 7 बजे पानी उकाला हुआ है, वो 3 पहर तक चलता है. 3 चौमासे में 3 पहर तक चलता है. ओके. सो अभी रात को भी एक पहर 3 घंटे का होता है, और अगर गर्म पानी पीते तो रात को तो वो पानी गर्म रहता ही नहीं, वो तो कच्चा पानी हो गया. वैसे भी इसी अगर तुमने 2-3 बजे भी बनाया हो तो भी मोमेंट रात होती है, वो गर्म पानी कच्चा पानी हो जाता है, क्योंकि उसमें तो जीव उत्पत्ति चालू हो जाती है. तो मोमेंट सनसेट होता है, सारे खाने में, सारे पानी में जीव उत्पत्ति हो जाती है. ओके, देन उत्पत्ति बंद नहीं कर सकते अपन. तो अभी TVR करना है समझो, लाइक इन केस इफ आई एम नॉट वांटिंग टू डू एकाशना बेशना समथिंग एंड आई एम टेकिंग हॉट वाटर, देन हाउ डू आई डू विद TVR दिस? में तो फिर कच्चा पानी होगा. TVR में कच्चा पानी होता है, रात को गर्म पानी होता ही नहीं है ना. गैस ऑन करो तो जीवों की हिंसा ही है. तुम कुछ भी कर लो, उसमें जीव उत्पत्ति होता है. यही तो सिद्धांत है रात्रि भोजन त्याग का. द मोमेंट सन इज सेटिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. एक्सपोनेंशियली रिप्रोड्यूस होते हैं. अंडरस्टैंड दैट वर्ड, एक्सपोनेंशियली रिप्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मिनट भी नहीं, एक एक समय में, एक एक क्षण में इतने जीव उत्पन्न होते हैं. तुम कितना भी उसको गर्म कर लो तो द मिनट तुम गैस ऑफ किया, वो फिर से हो जाएगा उसमें जीव उत्पत्ति. और तुम उबलता हुआ तो पानी मुंह में डालोगे ही नहीं. कोई भी नहीं पी सकता उबलता हुआ, गैस का उबलता हुआ पानी. 3 उबाल आए फिर पीना है पानी को. विल यू ड्रिंक 3 उबाल वाला गर्म पानी मुंह में कैसे डालेंगे? मोमेंट गैस है ना, द मोमेंट गैस, then you cannot do this TVR, right? Then गर्म पानी से TVR नहीं होता, कच्चा पानी का TVR होता है. कभी भी TVR तो कच्चा पानी का ही होता है. अच्छा, ठीक है. ओके, नहीं इवन तब नहीं कर रहे, समझ, पूरा दिन तब नहीं कर रहे, ओनली जस्ट रात्रि भोजन त्याग कर रहे, तो भी वो फिर नहीं होता है. आई मीन कच्चा पानी नहीं सही कर. सुनीता, it leads to another question. अगर हम सूर्यास्त के 5 मिनट पहले गर्म पानी कर लेते हैं, हाँ, तो भी वो ये हो जाता है. ओके, बात वहीं पर ठहरी है. मेरा बात ही वही था कि द मोमेंट सन सेट होता है, आपका जितना भी खाना है, जितनी भी पानी है, जिसमें भी पानी का अंश रहा हुआ आइटम है, वो सारा का सारा कच्चा हो जाता है. फिर से सब कुछ सचित हो जाता है, कुछ भी अचित नहीं बचता. इसीलिए रात्रि भोजन करना ही नहीं होता. रात्रि भोजन आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा सचित हो जाता है खाना, कुछ अचित रहता ही नहीं है खाना. सब में हलाहल जीवों की रिप्रोडक्शन चल रही होती है. वो पानी हो, वो खाना हो, द मोमेंट यू स्विच ऑफ द गैस, रात हुआ नहीं और आपने गैस ऑफ किया, खत्म, सब उसमें पूरा सचित हो गया, कुछ भी अचित नहीं है. हमारा उद्देश्य है अचित खाना और अचित पीना. लेकिन सनसेट के बाद कुछ भी चीज होगी वो सचित ही होगी. कोई चीज अचित होती ही नहीं है सनसेट के बाद, अनलेस वो खाकरा जैसा आइटम हो. लेकिन खाकरा वैसे भी तुम रात को खाओगे तो वो तो तुमको रात्रि भोजन त्याग दोष तो लगना ही है. रात को तो खा ही नहीं सकते उसको. सुनीता जी, मेरे को एक थैंक यू. आई जस्ट वांट लाइट ऑन उनोद्री तप. आप एकाशना में उनोद्री तप बोले थे ना, हाँ. तो उनोद्री तप करना तो ओनली इन एकाशना अपन को करना है. शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है, टेक्स्ट में ऐसा दिया है कि उनोद्री तप का मतलब है उन प्लस उदरी, मतलब कम खाना अपने उदर से. उदर मतलब अपना पेट. पेट में जितनी कैपेसिटी है उसका भी उन्होंने वर्णन दे दिया कि 28 कवल लेडीज के लिए होता है, उससे कम खाना उनोद्री होता है. तो अभी 28 कवल एक ही टाइम के आहार का ही तो बोला, 3 टाइम को डिवाइड करके तो नहीं बोला ना. बराबर. तो दैट इज हाउ आई रेड. मैंने भी कल ये बुक में बहुत क्लियरली पढ़ा था. उन्होंने ये बोला कि इसका ये मीनिंग हुआ कि एक बार के खाना ही खाना है आपको, उसमें 28 कवल से थोड़ा कम खाना है, एक निवाला कम खाना है, तो उसको उनोद्री बोलते हैं. लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीनों टाइम के खाने में भी उनोद्री कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ओनली विल लीड अस टू गो. नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं अपन. अगर नाश्ता कर रहे हैं, अपने को 2 खाकरा खाने की आदत हो मूंग के साथ, अगर आधा खाकरा कम किया तो वो उनोद्री है. ओके,
बट वो पचकान वाला उनोद्री नहीं होता है, वो बड़ा वाला उनोद्री नहीं है, लेकिन यू आर बिगिनिंग, नो समवेयर यू हैव टू बिगिन। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, और वो काया क्लेश, हाँ हाँ, अब आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, जैसे मैं ये भी बोल रही हूँ ना कि जैसे हम उपवास करते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उपवास नहीं करना, मैं ये बोल रही हूँ कि कब तक हम उस एलकेजी स्टेज में रहे, अब उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही इस चीज के लिए कब तक हम उनोदरी में, अगर आप उनोदरी शुरू करो, कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करो, देन गो अहेड, फिर तीन मील्स की जगह 2 मील्स में करो, फिर 2 मील से 1 मील में आ जाओ। तो दैट इज व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द बुक्स। ऐसे एक बात बताऊं आप सबको, हमारे जैन शास्त्रों में ना पचकान सिर्फ व्यासने का है, त्रियाशना बोल के कोई चीज ही नहीं है हमारे यहाँ। दिन में दो ही भोजन की बात बोली है परमात्मा ने। And when you look at today's intermittent fasting and all other things, perfectly fit बैठती है ये बात। दिन में 2 ही बार भोजन लेना है, और अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए ना, तो मिड डे में ही जितना हो सके 2-3 के बीच में सेकंड मील खत्म कर देना चाहिए। सो दैट इज द टाइम यू डू सेकंड व्याशना, मॉर्निंग में एक व्याशना हो जाता है। दैट इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू। व्याशना ही इज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट। तो व्याशने से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है तप के नाम पे, व्याशने से ऊपर हो सकता है, पर शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। अभी रस परित्याग का मैं आपको बोल रही हूँ, तो उसका ये मतलब थोड़ा ना कि 6 को 6 रस हम एक ही साथ छोड़ रहे हैं या टोटल एम्पिल कर रहे हैं। एक से बिगिन करना पड़ता है। इफ यू डोंट बिगिन, वी विल नेवर बिगिन। थैंक यू सुनीता जी, वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। Anybody else has any doubts? Thank you so much, Sunita. I would now request our Chief Secretary, Purvi Dugar, to give the vote of thanks. हेलो Yeah, somebody has a doubt? सुनीता जी, एक्चुअली प्रेगनेंसी में अभी जैसे अब पोजिशनल लग रहा है, तो प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए? समझ नहीं आया, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए? शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में किस तरह का, मतलब जैसे खाने पीने का बोलते हैं पूरे टाइम, सो व्हाट कैन शी डू टू स्टिल कंटिन्यू द कुछ छोड़ना, या क्या कर सकती है वो आपसे जो भी शक्ति हो वो ही करना है। ऐसा धर्म में कहीं पर भी नहीं दिया है कि शक्ति के उपरांत आप कुछ करो एंड देन यू लैंड अप इन द हॉस्पिटल। ये सब नहीं करना है। कई लोगों को ताकत होती है, वो सिद्धि तब करते हैं। मुझ जैसे लोग हैं जो संवत्सरी को व्यासना करते हैं। इतना बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं कर सकती उपवास। माय बॉडी डज नॉट हैव दैट मच ऑफ एंड्योरेंस। तो जरूरी नहीं है कि वो ही किया जाए जो सब लोग कर रहे हैं। जरूरी वो है कि जो तुम्हारी शक्ति हो वो करें, लेकिन समझ रहना जरूरी है कि करने लायक योग्य चीजें क्या है। जैसे मैंने बताया ना, मिनिमम आपको एटलीस्ट इतना सोचना है कि अगर आप रात्रि सौगंध पाल सको एटलीस्ट में, तो वो पालो। नहीं पाल रहे हो तो शुद्ध अंतकरण मन से उसकी क्षमा पड़ा लो परमात्मा से कि मैं रात को खा रही हूँ और मेरे बच्चे को भी ये सब पहुंच रहा है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मेरे बॉडी में ऐसी वीकनेसेस है जिसकी वजह से मैं ले नहीं पा रही हूँ चीजों को, ये धर्म को मैं पाल नहीं पा रही। बट व्हाट कैन आई डू? आई कैन बी क्वाइट फॉर सम टाइम। आई कैन नॉट गेट एंग्री। आई शुड नॉट गेट एंग्री व्हेन समबडी इज प्रोवोकिंग मी। मुझे बच्चों पे नहीं चिल्लाना है। ये देखो, जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो अननेसेसरी मोबाइल यूसेज। आज कितना हम मोबाइल को टच करते हैं। सबसे बड़ा डिटॉक्स तो उसका हो जाए, बॉडी के डिटॉक्स से ज्यादा, बॉडी के त्याग से ज्यादा, तो मैं तो बोलूंगी फूड के त्याग से ज्यादा वी शुड गेट टू मोबाइल का त्याग। ये जो मिनट हम टच कर रहे होते हैं ना मोबाइल को, इट्स तेव काय का जीव। और बोलते हैं स्विच को ऑन करने पे 3 दिन के तेले का दोष लगता है। सिंपल में 1 हफ्ते भर के लिए मोबाइल का त्याग कर लो आप, बाकी कुछ करो ना करो। इस मोबाइल में वैसे भी हम देखते क्या, आधा टाइम तो सबके फेसबुक पे कौन कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, वही हो रहा होता है। इंस्टाग्राम में सब हमको जलाने के लिए चीजों को कर रहे होते हैं, एंड देन वी एंड अप इन कमेंटिंग ऑन देयर पिक्चर्स, एंड देन वी सी रील्स। यही टाइम पास लगा रखा है हमको। We better get out of all of these things and get into our स्वाध्याय। स्वाध्याय is something anybody can do। आप खाने में त्याग नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये पूरा सेशन रखा कि आप त्याग को तपस्या को सिर्फ खाने के माध्यम से ले रहे हैं। मैंने इसीलिए 12 प्रकार बताया कि any of the 12 is equally तप। आप स्वाध्याय लेके बैठो ना, रोज का 1 घंटे का स्वाध्याय करो ना। स्वाध्याय में रटन नहीं होता है। हाँ, आपको भक्तामर ऑलरेडी आता है और आप उसका बैठ के रटन कर लियो, बोले मैं स्वाध्याय करूँ, वो स्वाध्याय नहीं होता है। वेयर यू कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन द मीनिंग, तभी होता है स्वाध्याय। सूत्र पढ़ना और सूत्र का अर्थ समझना, वो होता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करने से, कॉन्टेम्पलेशन करने से मन की भावों में सरलता आती है, शुद्धता आती है। तो दैट इज सेकेंड लास्ट तप, बहुत बढ़िया तप है। 1 घंटे का अनशन वैसे ही हो जाएगा। अगर एक समाइल हो तो 48 मिनट का अनशन हो जाएगा आपको। अनशन तो ऐसे आ जाएगा, रस परित्याग उसमें ऐसे हो जाएगा आपका।
1 घंटे आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन स्वाध्याय किया। बट ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अनशन नहीं करना, मैं ये बोल रही हूँ शक्ति नहीं है इसके लिए आप वो करो, लेकिन बिगिनिंग तो आपको अनशन से ही करना है। विदाउट LKG यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। 12th तो ऐसे आया नहीं जाता है, बट यू डेफिनेटली हैव टू टेक द स्टेप अहेड। एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेप लेते जाओ। 5 मिनट का अनशन होता है, 15 मिनट का अनशन होता है, 1 घंटे का अनशन होता है, लेकिन मिनिमम भगवान ने 48 मिनट का अनशन बताया है। एटलीस्ट मिनिमम में एक 48 मिनट का अनशन तो भी करो। कभी भी आप लेकर बैठते हो, इसीलिए लोग वो अंगूठियां पहनते हैं, 5-5 मिनट की भी अंगूठियां पहनते हैं ना, वो भी आप लेके बैठ सकते हो। आपने खाना खाया, भूख लगी और इसमें डाल दिया, और नहीं भूख लगी इसमें डाल दिया, जब खाना हो तो चेंज कर लिया, पानी पीना हो तो चेंज कर लिया, वो भी एक प्रकार का अनशन का छोटा सा तप है। बिगिन समवेयर इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज आप प्रेग्नेंट है, आपसे तप नहीं होगा। तप को आप खाने से रिलेट मत करना। जैनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू किचन, इट इज नॉट अ किचन रिलीजन, इट इज अबाउट आंतरिक शुद्धता। अंदर में क्या शुद्धता आप ला पाते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इस पर्यूषण को अध्यात्म से जोड़ें, खाने से न जोड़ें। So much. Yourself to a level where you want to be pure, you want to be true to yourself and to others. Instead of just thinking कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो खाना, मेरे को ये टाइम पे नहीं खाना, मेरे को जितना हो उतना करो, शांति से कर सको वो चीज करो। खुद की और दूसरों की व्यथा नहीं बढ़ाना, प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, खुद को भी नहीं, अपने बच्चे को भी नहीं, बाहर वालों को भी नहीं। Sunita, can I ask one last question? Sunita, I have a question regarding this. जो अभी स्वाध्याय क्या बोला ना, अब जैसे यू आर सो नॉलेजेबल बट हमको जीरो ज्ञान है, लाइक मेरे को जीरो ज्ञान है, तो आई डोंट हैव एनी थिंकिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग थ्रू स्वाध्याय, बट आई नो दैट ये पचकान लेने से समाइक हो जाती है और उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उसमें मुझे सिर्फ सामायिक का फल होगा ना, ये तो नहीं होगा कि मुझे कुछ जैसे रसभरी त्याग कर लिया। आप फल के हिसाब से मेरे मन में भी नहीं आएगा। आप फल के हिसाब से पर्यूषण नहीं करेंगे। मैं यही बोल रही हूँ ना, हम कर क्या रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, हमको देखना अंदर है। मेरे को करना स्वाध्याय है, दैट मीन्स मेरे को अंदर में चेंज लाना है। मेरे को फल क्या मिल रहा है उससे क्या करना है, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। ये सिंपल सूत्र। लेकिन कुछ कर रहे हैं ना, डेफिनेटली। इसमें ऐसा मत सोचो कि आपको फल नहीं मिल रहा, प्लीज ऐसे नहीं सोचना सामायिक का फल मिल रहा है कि क्या फल मिल रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि करने से ये मत, उद्देश्य ये मत रखो कि मुझे कितना पुण्य मिल रहा है, कितना फल मिल रहा है, ये सोचो अंदर में मेरे परिवर्तन कितना आ रहा है इससे। नहीं, आई थिंक आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक मैं क्या सोचूं ताकि मुझे ये सबका समझ में आए कि ये मैंने किया है, नॉट फॉरगेट अबाउट फल। आई मे बी माय क्वेश्चन, पुटिंग माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस चीज का त्याग किया है मैंने समायिक करते हुए। ओके, समायिक में तो देखिए आप 48 मिनट समायिक कर रहे हैं तो आपने अनशन तो हो ही गया ना ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही आपका कोई रस में कोई इंटरेस्ट, अगर आपको उस वक्त मुंह में रस आ रहा है, जैसे बोलते हैं जो देवता होते हैं ना, वो भी तरसते हैं मनुष्य भोग के लिए, संयम पाने के लिए। क्यों पता है, हम संयम कर सकते हैं, छोटा छोटा संयम हम पाल सकते हैं, छोटी छोटी त्याग हम कर सकते हैं। देवता वो सब कर नहीं सकते, क्योंकि देवता के उनका वैक्रिय बॉडी होता है, ऐसा होता है द मोमेंट दे थिंक ऑफ ईटिंग समथिंग, उनके मुंह में वो रस की उत्पत्ति हो जाती है और उनकी तृप्ति हो जाती है उस चीज की। ओके, तो वो त्याग हो ही नहीं सकता। हमारे क्या है कि चीज बाहर पड़ा है, लेके मुंह में डालो तो ही उसकी कंप्लीशन होती है। रसगुल्ला खाने का डिजायर हो, बाहर है, रसगुल्ला उठा के मुंह में डालू तो ही वो डिजायर खत्म होती है। तो अगर मैं समाइक में बैठी हूँ तो मेरे मुंह में रस छोड़ो, दिमाग में भी वो बात नहीं आती, क्योंकि मैं समाइक में कुछ दूसरी चीज में लगी हूँ ना, या तो मैं स्वाध्याय में लगी हूँ या मैं ध्यान में लगी हूँ। हम जो ये माला गिनते हैं, लोग बोलते हैं कि माला गिनने में क्या पुण्य है, तो माला गिनते गिनते आप क्या कर रहे हो, आप रटन कर रहे हो प्रभु के नाम का। भगवान कौन है इसके बारे में सोचना, चिंतन करना उस वक्त, भगवान के गुण क्या है, लक्षण क्या है। बराबर बोला जाता है सत्संग में रहो, सत्य के संग में रहो, जो आपको सत्य को दिखा सके उनके संग में जरूर रहना। अगर हम यही बोलते रहे, देखिए जन्म से तो हमको जैनिज्म मिल गया, लेकिन कर्मों से अगर हम जैन न बने तो ये जन्म भी वेस्ट हो जाएगा, और फिर पता नहीं है कब मनुष्य भाव मिलेगा वापस। जन्म को वेस्ट नहीं करने का, ये जन्म को ऐसे ही गंवाने का नहीं। जितना कम समय मिला, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अर्जुन माली का। अर्जुन माली के लाइफ में, अर्जुन माली के वाइफ के साथ उन्होंने 6 और लोगों का खून करना चालू किया, और ऐसे 2000 के करीब लोग, नहीं 1400 करीब लोगों का खून उन्होंने रोज किया, मतलब टोटली मिलाकर के एवरीडे 7 लोगों का खून करते थे। आप मानेंगे कि वही जीव उसी भव में मोक्ष गया है। दड़ प्रहारी का केवल ज्ञान कहाँ होता है पता है, कत्ल करते वक्त तलवार हाथ में, खून की धारा बह रही है उस तलवार, उसमें उस जीव को केवल ज्ञान होता है।
भरत Okay. महाराजा जो है ना, ऋषभ देव भगवान के पुत्र, अपने मेकअप रूम में आरीसा महल में बैठे हैं और वहां उनको केवल ज्ञान होता है, अपने हाथों की अंगूठी उतार रहे होते हैं और उसकी क्षण भंगुरता, उसकी नश्वरता और देखते देखते उनको रियलाइज होता है कि ये सारा अलंकार मेरे शरीर का है, मेरी आत्मा का इसमें कुछ भी नहीं है, क्या मेरी आत्मा का इसमें। ये थॉट के कॉन्टेम्पलेशन में चलते चलते उनको केवल ज्ञान होता है। सो डोंट थिंक कि मैं कर क्या रही हूँ, उसका रिजल्ट क्या होना है। आप सिर्फ अंतकरण में उतरने की कोशिश करिए, सत्य के संग में रहिए, प्रैक्टिस करिए धर्म को, साधुओं के समागम में जाइए, ज्ञानियों के समागम में जाइए। ये 8 दिन अपनी आत्मा के उद्धार के लिए है। ऐसे दिन मिले हैं हमको कि ये पूरे साल में हम नहीं करते, इसीलिए एटलीस्ट 8 दिन तो भी हम करें। 8 दिनों में कम से कम कंप्राइज करके धर्म करें, दुनिया की परपंच में न जाए। ठीक है, बच्चों को देखना है, घर देखना है, वहां तक ठीक है, उसके बाद बाकी की परपंच इन 8 दिनों में एटलीस्ट ना करें। आत्मा के प्रति एक शुरुआत करें कि मैं मेरी आत्मा के अंदर मुझे उतरना है। लेट मी बिगिन समथिंग दीज 8 days। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है उसके बाद का सफर। आप 1-2 बुक हाथ में रखिए और समाइक में बैठ के चालू करिए, या फिर अगर आसपास बारासा हो तो उनके व्याख्यान सुनने जाइए। बहुत चेंजेस आते हैं, छोटी छोटी चीजों में शुद्ध भाव से जाइए, कुछ जजमेंटल होके नहीं जाना कहीं पर भी। ये साधु ऐसा बोलता है, वो साधु ऐसा करती है, वो वैसा है, संग में लोग ऐसे हैं, बदबू आती है, ये होता है, वो होता है, वो सब देखे बगैर सिर्फ मुझे ज्ञान का अर्जन करना है, स्वाध्याय करना है, मैं जा रही हूँ, ये सोच के आप जाएंगे, आराम से बहुत कुछ करके आएंगे। बराबर। Thank you so much, Sunita, for enlightening this. Thank you. Thank you. Yes, Brinda. Sunita, one small doubt, Mama. Just wanted to ask was, अपन सामयिक करते हैं ना, तो I feel sleepy. I'm like after 20 minutes something, एक 10 मिनट का nap हो ही, मतलब टेक्निकली बोले तो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, निद्रा Yeah. का उदय, निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय हो जाता है। बट एक्चुअली हम एक तो रात को सही से सोते नहीं है, एंग्शियस लोग होते हैं ना, तो कम सोते हैं अपन। आधी रात में जगने का काम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, दिमाग बहुत भटकाते हैं इधर उधर। तो डेफिनेटली जहां द मोमेंट हमको शांति मिलती है, कई बार लोगों को होता है, पता है, अच्छी एसी ठंडी सी हो जाए, 5 मिनट के लिए वो एसी के रूम में जाते हैं, फट से नींद भी आ जाती है, पता भी नहीं चलता, बिकॉज इतना बॉडी में ऊपर 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 अंदर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बॉयल उबल रहा होता है अंदर, थॉट्स में, इमोशंस में। तो मोमेंट शांति मिलती है, फ्लैट, खत्म, सब कुछ खत्म, नींद आ जाती है। ऐसे ही सामायिक में होता है, हम इतने समता भाव में आ जाते हैं, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई ईगो, ना कोई इमोशन, सब बैलेंस हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमको नींद आ जाती है। बिकॉज सबसे पहले उसका असर बॉडी पे दिख रहा होता है, हमारा बॉडी कितना रेस्ट मांग रहा होता है, हमने कितना कम दिया उसको। डज नॉट मीन हमको सोना है, इट मीन्स हमारे जो इमोशनल अप्स एंड डाउन है ना, उसको लिमिट में लाना है, एंग्शियसनेस को लिमिट में लाना है। Okay, okay, okay. हम अगर एंग्शियसनेस को लिमिट में नहीं लाएंगे तो समय में नींदें आती रहेगी। अच्छा, ठीक है। Thank you so much. Thank you, dear. Thank you so much again, Sunita. So, shall Thank I? you for giving me this wonderful opportunity. Yeah. Thank you. Over to you, Purvi. Please give the vote of thanks. Our Chief Secretary, Purvi Dukar. Yes. Thank you so much, Priyanka. Ichhakaranam Sandisa Bhagwan. Jai Jinendra, everyone. A very good evening to all. I'm very, very delighted to see each one present here for this TAP workshop. And we are absolutely so grateful and privileged to have you, Sunita Gulecha, with us. And you have so beautifully enlightened each one of us here with great wisdom and the importance and significance on TAP and many other things. And even different types of TAP and its benefits, our behavior towards it, the scriptures, and even the myths which we are just carrying in our mind or we are holding on, and even how can we control the mind. I think that is the true part to enlightenment, which you have very beautifully, very patiently explained to us. And I truly believe that this is one of the most interesting and the most important thing for everyone. And surely I believe that everyone here would have benefited this. And as the position is just nearing, and so you have left us with the most beautiful thoughts and to keep spreading knowledge around us. So thank you so much, Sunita, once again. Thank you. And I thank B2B conveners, Brinda, for bringing, and even Sunita for bringing this amazing workshop, and our Joint Secretary Priyanka Baradia for conducting this show so effortlessly. Thank you so much, guys.
May I ask Sunita to please accept a letter of appreciation from us? Priyanka, can you please share? Thank you so Thank much. you This is so a much. small token for you, Sunita. I wish we could give you it personally, but please accept it virtually today. And thank you all the audience, and thank you for your valuable time and presence. Thank you so very much. And may I ask Priyanka to please put the national anthem. Yeah, thank you. Yeah, sure. May I request everyone to please rise for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchal Jaladhi Taranga Tab Shubha Naame Jage Tab Shubhaya Shish Mange Gahe Tab Jaya Gatha Jana Gana Mangalam Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you, everyone. Thanks a lot, Priyanka. Jai Jinendra. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, Sunita. Thank you, Purvi. Thank you. Sunita, amazing session, Mama. Thank you. Thank you very much. I really missed you, Yarvinda. Hey. No, I couldn't help it. I'm really very sorry for the same. Thanks, Priyanka, for taking it over. Auntie, Babita ji, Sheetal Sipani, thank you so much. Vishali, Shikha, Suman ji, thank you so much. Amazing. The session was really amazing. Yeah. Mast tha ekdam. Yes, very well explained in detail. Couldn't come on the stream but could listen. I'm like, utna to thoda ज्ञानवाणी करा मैं थोड़ा काम at least सुन पाई मैं. I mean, I am zapped. You have some tremendous knowledge. सुनीता, थोड़े दिन में लिया करो हमारा. अरे नहीं यार, nothing at all. ये जो भी मैं बोली ना, ये सब तो भगवान की वाणी है. मुझे अभी केवल ज्ञान होना बाकी है. नहीं, but keep spreading it to us. We also need to listen to it again. अपने केवल ज्ञान में ही एक्चुअली सब कुछ दिखता है और सही पता चलता है. ये परमात्मा की देन है. शासन का ज्ञान तो सब जगह बिखरा पड़ा है. We are not taking it. That is the the saddest thing. परमात्मा ने इतना दिया है और हम कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीजों का. Truly it is amazing to learn. It is really amazing to learn. और ये तो मतलब believe me, 5%. Believe me, 15 बुक खोल के रखी हुई है मैंने घर पे. अभी भी फिलहाल मेरे पड़ी है. I've heard so much, you know. मतलब ये तो तू आज 5% बोले, इतना ज्ञान तेरे में इतना है ना, मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए. नहीं रहे ज्ञान सब कुछ नहीं है अपन में. ज्ञान सब तो पासिंग द पास चल रहा है. मैं वापस बोल रही हूँ. ज्ञान वही होता है जब वो आचरण में आता है, जब हमारे कांटेक्ट में हो तो ही वो ज्ञान है. नहीं तो वो ज्ञान सिर्फ बर्डन है. किसी को भी हो सकता है. एक फॉरेनर को बोल रहे ना, आज सुबह पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में जो स्पीच सुना मैंने, जो लेक्चर सुना, उसमें एक नॉन जैनी है, अमेरिकन है, वो बैठ के जैनिज्म के बारे में इतना कुछ बोल रहा था. डज नॉट मीन उसका ज्ञानावण्य का शिवक्षम हो गया और वो बहुत कुछ कर लेगा. अनलेस आचरण में उतर के नहीं आता, वो ज्ञान नहीं होता. उसका यूसेज. Yes, this position, let us all intend to at least utilize or be aware of what we are doing. Definitely. That's the least we can do. Absolutely, well said.